Hockey by Mr. Baljinder Singh, National Player and Hockey Coach, Department of Sports, Punjab. Coach improves our competence, brings into life top-level brilliance. Coach bring out our mettle, gives strength to face life's battle. Coach are the key to self-reliance, way to accept mistakes without defiance. Coach illuminates team spirit, inculcated in students' life, noble habits. Coach make the man and build our team 10 on 10. Today, this webinar is going to fill every one of us with odors of power, self-confidence, and of course, winning spirit. Today is a great pleasure for all of us to have such a great personality between us, Mr. Baljinder Singh, Hockey Coach, Parade Coach, Department of Sports, Punjab. We welcome you all, sir. And ideal of knowledge, experience, and inspiration to all of us, Dr. Sachin Untavle, sir, Director, GSN College of Engineering, Nagpur, and Dr. Milind Barathe, sir, Principal of Cities and Bader ES College, Nagpur, Dr. Kapil Rajulwar, sir, Dean Academics, Dr. Dheeraj Bhosar, sir, and Dr. Nissan Kipse, sir. We welcome you all, sir. Now, Dr. Nissan Kipse, sir, College Director of Physical Education and Sports from City and Bader ES College. He is qualified in Masters of Physical Education, PhD, and Diploma in Sports Coaching in Handball from NSNIS. He has 5 years of experience in his field. He is life member of Nagpur District Handball Association, and he was honored and awarded by Guardian Minister of Nagpur for the best coach on Republic Day for the year 2008. I request Mr. Nissan Kipse, sir, to give preamble of the program. Please, sir. I'm audible, ma'am? Yes, sir. Thank you so much, ma'am. A very warm welcome to all the dignitaries, players, coaches, and my dear students. This one-day national webinar on the topic Tokyo Olympics, a game changer for Indian hockey, is jointly organized by CP Bader College and GH Raisoni Engineering College, Nagpur, on the eve of National Sports Day. National Sports Day is celebrated all over the country on the occasion of birth anniversary of Major Dhyanchandji on 29th August. It is a matter of great pride that after 41 years in the Tokyo Olympics, the Indian hockey team won bronze medal. I must mention here that the first time in the history of women's hockey, the women's hockey team reached semi-finals in Olympic Games. Earlier, India had won gold medal in 1980 in Moscow Olympics. The Indian team could not win any Olympic medal since then. But this time, all the hard work, sacrifice, and devotion of Indian hockey players and coaches had a fruitful result. I have to mention here that they have got full support from concerned authorities. This is the third bronze medal of India. We have won a total of 8 gold medals in hockey. The victory in Hockey Olympics will definitely have positive impact on young aspirant Indian hockey players. And I have full faith that Indian hockey players will achieve best and in the world of hockey. We have organized this webinar to encourage young players to play our national game hockey. The journey from 1980 to 2021 will be reviewed today by our esteemed resource person, Dr. Baljinder Singh, who himself is a medalist hockey player and a successful coach. He, in his brief speech, will be enlightened us about the possibilities which emerge after this phase for Indian hockey in future. We hope that this webinar will inspire many hockey players and will be helpful for the promotion of the game. I now request Ms. Bhargavi Khairkar to take charge for the future course of action. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you so much. Now I request Dr. Sachin Untavle, sir, Director of GSN College of Engineering, Nagpur, to address the students. Please, sir.
Thank you, Bhargavi. Am I audible? Yes, sir. Yeah. A very good morning to one and all present here. Chief guest of the function, Dr. Grim Barate, sir, Principal CPM Barar Educational Society College, Nagpur. Guest of honor and the keynote speaker, Mr. Baljinder Singh, national player and hockey coach, Faridkot, Department of Sports, Punjab. Dr. Nishant Tipte, College Director, Physical Education and Sports, CPM Barar College. Dr. Neeraj Bhoskar, Deans, faculty members, student participants, ladies and gentlemen. On behalf of GS Raisoni College of Engineering, its management, and on my personal behalf, I welcome you to this national webinar, a game changer for Indian hockey, on the eve of National Sports Day Celebration event at GHRC, in collaboration with the CPM Barar Education Society College, Nagpur. Sports are important for the physical and mental well-being of the youth. Individuals who play sports remain healthy. India has produced many sporting legends like P.T. Usha, Sachin Tendulkar and Major Dhyan Chand, also known as the Hockey Wizard. The National Sports Day is celebrated on 29th of August every year to commemorate the birth anniversary of Indian hockey legend Major Dhyan Chand ji. Born on 29th August 1905, present day of Prayagraj, UP, Major Dhyan Chand was the captain of the gold medal winning Indian hockey team at the Berlin Olympics in 1936. The Government of India awarded Major Dhyan Chand India's third highest civilian honor of Padma Bhushan in 1956. Now, in a bid to pay tribute to such a legendary player, the Government of India decided to celebrate his birthday as the National Sports Day in 2012. We have gathered here to celebrate the National Sports Day and pay tribute to the extraordinary personality, Major Dhyan Chand ji. The institution GS Raisoni College of Engineering was established in 1996 and is an autonomous flagship institution of the Raisoni Group of Institutions. Apart from all best practices used for academics, the students of GHRC are constantly encouraged to participate in co-curricular and extracurricular activities, including the sports. I am extremely proud to inform all present here that GHRC has been instantly awarded the District Green Championship Award jointly by the Mahatma Gandhi Rashtriya Gramin Shiksha Parishad and the Government of India. The award was bestowed to GHRC for studying and maintaining cleanliness in the district at the hands of Major Dayasankar Tiwari ji of 2 days back. We at GHRC have a mission to give a holistic education, and hence sports is given an equal weightage along with the academics. Many of our college students are color holders and are actively involved in sports activities. I am extremely happy that this webinar has been organized as eminent personalities in the field of sports like Baljinder Singh ji, and will certainly motivate the students participants for a larger contribution in the field of sports. Emil Zatopek, who was a Czechoslovak long distance runner, best known for winning 3 gold medals in 1952 Summer Olympics in Helsinki, he had quoted that an athlete cannot run with pocket in his money. He must run with hope and his heart and dreams in his head. What a nice quote he has said. I appeal to all present here to have a strong passion in their head as well as in heart to succeed, and no one can stop you if you have this passion. I once again wish all of you on this celebration of National Sports Day at GHRC. I thank CPM Barar College for partnering with us and collaborating with us in organizing this webinar. I thank Principal Sir Grim Barate Sir. I thank Mr. Baljinder Singh Sir for giving consent for this particular webinar. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspirational and valuable words. Now I request Dr. Milind Barate, Principal of CP and Barar BES College, Nagpur. He is Principal of this college and he has qualified M.Com, MBA and PhD, Diploma in Cyber Laws. He has total experience of 15 years. He is Chancellor Nominee and Management Council of ITM Nagpur University, and he is member of Grievance, Finance and Accounts, Building and Work, Purchase and Standing Committee of ITMNU. I request you, sir, to address the students. Please, sir.
Thank you, ma'am. I am audible? Hello? Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you. I welcome you all on the behalf of CPN Virar College in this joint exercise of GH Raisoni Engineering College of Engineering and CPN Virar College, Nagpur, on the occasion of the birth anniversary of hockey legend. The Hansing Sports Day has been celebrated in India, and to celebrate this occasion, we have organized this national level webinar on the topic Tokyo Olympics 2020, a game changer for Indian hockey. As Dr. Kitte in his introduction just told, that after 41 years, India has won a bronze medal in the event of hockey, and this is really a matter of pride for all of us. And keeping this in view, the topic for today's webinar has been selected, and it is a very relevant and significant topic. I think so. Director of GH Raisoni College of Engineering, Shri Sachin Ji Untawale, today's expert and keynote speaker, Shri Baljinder Singh Ji, national player and hockey coach, all other dignitaries and students, I welcome you all on the behalf of CPN Virar College, Nagpur. As we all know, CPN Virar College is one of the oldest institution of higher education in Nagpur and Vidarbha, and we are having a very rich tradition as far as sports is concerned. Our teams were and today also are ahead in the events of swimming, kho-kho, kabaddi, handball, etc. We are having a very rich tradition in sports, in addition to other activities like academics, social activities and other activities. I am really, it gives me pleasure that GH Raisoni College of Engineering and our college, that is CPN Virar College, are organizing today's webinar, and we have got a very good response, I can see. I am thankful to Shri Untawale sir, Shri Baljinder Singh Ji, and all the organizers, and I extend my best wishes to all the participants, all the players, and I again welcome you all. Thank you. Thank you a lot. Thanks a lot. Thank you so much, sir, for your valuable words. As I said, it's a great pleasure today to have such a great personality with us, Mr. Baljinder Singh, hockey coach in Department of Sports, Government of Punjab. He is qualified from MA, MPhil and Physical Education, and along with he has done his diploma in sports coaching in hockey from NSNIS. He has more than 20 years of experience in this field. He is silver medalist in diploma in physical education, and he worked as district sports officer for Faridkot, Punjab, and he has also organized various hockey tournaments. I now request Baljinder Singh sir to take the charge and address the students. Thank you, ma'am. Can I start? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you, ma'am. Thank you जी. तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर आज के जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर सचिन उंटावले जी का, डायरेक्टर GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, एंड डॉक्टर मिलिंद बरहाते जी, प्रिंसिपल CP एंड विरर कॉलेज नागपुर, डॉक्टर निशांत चित्ते, मैडम भार्गवी खेरकर, और जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है जिन्होंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ अपने
जो व्यूज हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 गेम चेंजर फॉर इंडियन हॉकी आपके साथ शेयर कर सकूं और किसी न किसी तरह हॉकी की प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। हेलो हेलो Sir, thank you. स्वागत है सर, आपका स्वागत है सर, स्वागत है। ओके सर आपका प्लीज आप कैमरा ऑन कर दीजिए सर। ओके सर ओके आ रही सर फोटो। हेलो मैम पिक्चर आ रही है No, sir. नहीं सर अभी तो आ रही है। जस्ट वेट सर राइट कॉर्नर पे देखिए। हाँ आ गया सर आ गया। Yes, sir, you are visible now, sir. मैडम आवाज आ रही है जी? Yes, sir, please go ahead, sir. ओके जी ओके फोटो भी आ रही है मैडम अब? हाँ जी Yes, sir, you are visible as well as visible, sir. ओके मैडम थैंक यू। हाँ जी मैडम Yes, sir. हाँ जी हाँ जी। तो मैडम मेरा एक एटीट्यूड है अभी मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मैं भगवान के नाम से शुरू करता हूँ। तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं सर। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। कहते खुदा बंदे तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदा बंदे तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का जिसने मुझे इस लायक रखा है कि मैं आप जैसी महान हस्तियों और पर्सनैलिटीज के आगे अपने विचार रख सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उस खुदा का, उस परमात्मा का, उस वाहिगुरु जी का जिसने मुझे इस काबिल बनाया। तो सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है एज बीइंग अ हॉकी प्लेयर, एज हॉकी कोच एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हॉकी में 41 ईयर्स के बाद जो इंडिया का मेडल आया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारी दोनों टीमों खासकर वुमेन टीम ने भी ओलंपिक्स में बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि मेरा मानना है द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट, द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव कंकर्ड बट टू हैव फॉट वेल। तो स्पोर्ट्स में जीतना तो जितना जरूरी है ही है उससे ज्यादा जरूरी है भी पार्टिसिपेट करना। खासकर ओलंपिक जैसा जब इवेंट होता है इसमें पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है जब हम अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक मेडल लेके आते हैं और अपने हिंदुस्तान का नाम इतने देशों में रोशन करते हैं। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनके साथ इस खुशी को साझा करना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हेलो हेलो आ रही है आवाज? Hello. आवाज आ रही है ना? डिस्टर्बेंस Hello. Hello, Minister sir. Sir, I request you to please mute. Hello. हेलो हाँ जी कैन आई स्टार्ट नाउ? Yes, sir. Please, sir. तो सबसे पहले मैं उन सभी कोचेस का, सभी खिलाड़ियों का, सारे ऑर्गेनाइजर का, स्पेशली जो उड़ीसा के सीएम है उनका जिन्होंने इस इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, सारे व्यूअर्स का जिन्होंने इंडिया टीम की जीत के लिए जो दुआएं की हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं की वजह से आज हम इस मेडल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो आज हमारा जो टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 गेम चेंजर फॉर इंडियन हॉकी, इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा हॉकी की हिस्ट्री के बारे में जानना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते तो उसकी फ्यूचर में प्रमोशन के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देंगे। तो हॉकी का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, बड़ी रोमांचक रही है। तो बहुत कम लोग जानते होंगे भी जो हॉकी है वो
4000 साल पहले से भी खेली जाती रही है किसी न किसी रूप में। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे प्रूफ मिले हैं, जैसे इजिप्ट है, वहाँ पे ऐसे प्रूफ मिले जो 4000 साल पहले भी हॉकी वहाँ पे खेली जाती थी किसी न किसी रूप में। इसके बाद ईरान में, इथोपिया में भी ऐसे प्रूफ मिलते हैं, ग्रीक में, रोमन में, पर्शिया में, जहाँ से हमें यह हम सोच सकते हैं कि हॉकी उस टाइम पे भी पॉपुलर थी। तो बस फर्क इतना था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे तब, ना ही कोई स्पेसिफिक ग्राउंड थे। हॉकी के नाम भी अलग अलग नाम से खेली जाती थी। कहीं पे हॉकी को हरले कहा जाता था, कहीं पे हकेट, स्कॉटलैंड में शिंटी के नाम से खेली जाती थी, हमारे पंजाब में खिद्दो खुंडी के नाम से ये गेम बहुत पॉपुलर थी। परंतु समय के साथ साथ इसमें कई चेंजेस आते गए और ये आज जो हम देख रहे हैं एस्ट्रो टर्फ पे, ये एक मॉडर्न हॉकी है जिसे इंट्रोड्यूस करने में ग्रेट ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ था। तो ग्रेट ब्रिटेन में ये गेम लेट 18th सेंचुरी में पॉपुलर होने लगी थी और 1861 में ब्लैक हिथ फुटबॉल एंड हॉकी क्लब इंट्रोड्यूस हुआ, जिन्होंने इस गेम के कुछ रूल्स फ्रेम किए और उसके बाद ये मॉडर्न रूप है जो हॉकी था वो शुरू हो गया। तो इस तरह ये हॉकी बड़े लंबे समय से किसी न किसी के रूप में चलती आ रही है। तो खुशी की बात यह है कि 1896 में जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू हुए तो हॉकी को भी ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड करने के लिए जो बात ही चली, तो उसी कोशिशों के सदका 1908 लंदन ओलंपिक्स में, 1908 की जो लंदन ओलंपिक थी उसमें हॉकी को शामिल कर लिया गया। परंतु जो हमारी इंडियन हॉकी टीम है, जो इंडिया में हॉकी का ओरिजिन है, वो ब्रिटिश आर्मी के थ्रू हुआ। तो ब्रिटिश आर्मी खेलती थी, हमारे जो लोग आर्मी में भर्ती थे वो भी उनके साथ हॉकी खेलने लगे और धीरे धीरे हॉकी इंडियन आर्मी में पॉपुलर होती गई और हमने थोड़ी देर बाद ही पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल कलकत्ता में ये गेम पॉपुलर हुई, उसके बाद कुछ और दूसरी स्टेट्स है उसमें भी ये गेम धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। तो इंडिया में जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है वो बैटन कप के नाम से शुरू हुआ, जो कलकत्ता में करवाया जाता था 1895 में। उसके बाद आगा खा कप जो बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये टूर्नामेंट आज भी जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं हॉकी की प्रमोशन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे जब टाइम गुजरने लगा तो 1924 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी हॉकी का निर्माण हुआ, जिसने इस गेम्स को पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से वर्ल्ड में प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसी तरह 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन भी बनाई गई, जिसने गेम की प्रमोशन के लिए इंडिया में काम करना शुरू कर दिया। 1920 में हमने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर लिया था, परंतु इंडियन हॉकी टीम है जो उसने 1928 में पहली बार पार्टिसिपेट किया एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। तो 1928, 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 बर्लिन ओलंपिक, इन तीनों ओलंपिक गेम्स में हमने लगातार गोल्ड मेडल जीत के अपनी इंडिया की जो ग्लोरी है इसको पूरे वर्ल्ड में जो प्रूव किया, साबित किया भी हम हॉकी अच्छी खेल सकते हैं। जो 1936 की बर्लिन ओलंपिक की बड़ी फेमस हुई क्योंकि उसमें जो आज के नेशनल हीरो हैं हमारे हॉकी के, मेजर ध्यानचंद जी ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की थी, उनकी वजह से बर्लिन ओलंपिक्स में हमने गोल्ड मेडल जीता। तो उसके बाद 40 और 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक गेम्स हो नहीं सके। 1948 की जो लंदन ओलंपिक्स द्वारा थी, 52 की हेलसिंकी ओलंपिक्स और 56 की मेलबॉर्न ओलंपिक्स में हमने तीनों ओलंपिक्स में लगातार फिर गोल्ड मेडल जीते और मिस्टर बलबीर सिंह ने इन तीनों ओलंपिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी एक बुक भी लिखी गई इसके ऊपर, द गोल्डन हैट्रिक। उन्होंने तीनों ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा स्कोर किए और आज अभी पीछे उनकी डेथ हुई है। बड़े लेजेंड प्लेयर थे वो भी ध्यानचंद की तरह। उसके बाद पार्टीशन हो चुका था, धीरे धीरे पाकिस्तान की टीम भी डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड हॉकी में। तो 1960 की जो रोम ओलंपिक थी उसमें पहली बार हम पाकिस्तान से फाइनल मैच में ओलंपिक्स में हारे। उसके बाद 1964 की जो ओलंपिक्स थी उसमें टोक्यो में हमने दोबारा गोल्ड मेडल जीत के अपने मुल्क का नाम फिर दोबारा रोशन किया। 1968 की मैक्सिको ओलंपिक और म्यूनिख ओलंपिक 1972 में जो दूसरे कंट्रीज थे, ऑस्ट्रेलिया था, हॉलैंड था, जर्मनी था, इन्होंने भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया क्योंकि हॉकी पॉपुलर हो रही थी धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में। तो उनमें हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होगी और हमने इनमें ब्रॉन्ज मेडल जीता।
लेकिन खुशी की बात ये थी कि हम मेडल टैली में हिंदुस्तान को लेकर आ रहे थे, परंतु 1976 में एक हॉकी की फील्ड में इतना मेजर चेंज आया। अभी जो हॉकी की गेम थी वो नेचुरल सरफेस से आर्टिफिशियल सरफेस पे कन्वर्ट होगी, और वो ओलंपिक्स में इंडिया कोई ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे सका, क्योंकि ओलंपिक गेम्स एस्ट्रो टर्फ यानी कि आर्टिफिशियल सरफेस पे ऑर्गेनाइज किए गए। मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स थी कनाडा में, तो इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही, हम 7वें नंबर पे आए। और उसके बाद 1980 की जो मॉस्को ओलंपिक थी उसमें हमने दोबारा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, परंतु उस ओलंपिक्स में बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस ओलंपिक का 36 कंट्रीज ने बाइकाट किया था, क्योंकि ये जो ओलंपिक गेम्स थे ये मॉस्को में ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो यूएसए के साथ जितने 36 कंट्रीज थे उन्होंने इस ओलंपिक का कम्प्लीटली बाइकाट कर दिया, तो बहुत कम टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। परंतु फिर भी चलो मेडल तो मेडल है, तो इंडिया ने इसमें मेडल जीता। परंतु 1980 से लेके 2021 तक ये बड़ा लंबा सफर दोबारा तय करना पड़ा मेडल टैली में आने के लिए। तो इसके बड़े रीजन है, तो धीरे धीरे हम ये रीजन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो क्या रीजन थे कि हमारी जो इंडियन हॉकी वर्ल्ड में पूरी फेमस थी, और हमने दूसरे लोगों को, खुशी की बात है कि हॉकी खेलना सिखाया। तो हमारे कोचेज ने बाहर जाके ट्रेनिंग दी, लोगों को तैयार किया, फिर उन्हीं लोगों ने हम पे डोमिनेट किया। तो ये कहीं ना कहीं खुशी की बात यह है कि हमने लोगों को दिखाया, पर दुख की बात यह है कि उन्हीं लोगों ने हमें बाद में डोमिनेट किया। ठीक है, तो आज का दिन बड़ा फेमस भी है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्मदिन है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे मनाया जाता है। तो उनकी जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए उनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे पे मनाने का जो विचार है इंडियन गवर्नमेंट का, मैं इससे बहुत खुशी व्यतीत करता हूँ, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है जब जो कोई प्लेयर अपने कंट्री के लिए इतना कुछ करता है तो उसकी जो अचीवमेंट्स है उसको याद रखना चाहिए। तो आपके सारे हमारे जो आज के वेबिनार के चीफ गेस्ट साहब हैं या डॉक्टर निशांत जी ने इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी हैं उन्होंने किस तरह इंडियन हॉकी को पूरी दुनिया में उसका लोहा मनवाया, पर कुछ थोड़ी सी बातें हैं, चलो मैं भी बता देता हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। तो ध्यानचंद जी जैसे लोग बहुत कम है जिन्होंने क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न कोचिंग है उसमें एक फिलॉसफी चलती है, कैच एंड कैच देम यंग, and if you want to achieve better performance in the field of hockey or sports, then you have to catch the players in the young age. बट अगर आप मेजर ध्यानचंद जी की हिस्ट्री को एनालिसिस करें तो उन्होंने छोटी एज में हॉकी को नहीं खेला। तो उनके जो फादर थे सोमेश्वर दत्त सिंह, वो आर्मी में जॉब करते थे। आर्मी में जॉब की वजह से उनकी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती रहती, तो ट्रांसफर होने की वजह से वो एक शहर से दूसरे शहर में मूव करते थे। इस वजह से उन्होंने जल्दी हॉकी खेलनी शुरू नहीं की। वैसे भी कुछ लोग मानते हैं और कहीं बुक्स में भी ये मेंशन है कि जो ध्यान सिंह जी था, उनका सही नाम पहले, उनका ज्यादा इंटरेस्ट रेसलिंग की तरफ था। तो हॉकी उन्होंने आर्मी में जाके खेलनी शुरू की। उनका आर्मी बैकग्राउंड था, उनके फादर ने 16-17 साल की एज में उन्हें आर्मी में भर्ती करवा दिया। वहां पे जाके उन्होंने हॉकी खेलनी शुरू की और बहुत ही जल्द उन्होंने हॉकी में वो मुकाम हासिल कर लिया जो लोग 15-20 साल में भी हासिल नहीं कर सकते। तो बड़ी खुशी की बात है। ये जो ध्यानचंद नाम है इसके पीछे भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। तो कहते हैं ध्यानचंद जी रात को चांद की रोशनी में ट्रेनिंग करते थे। अपनी जो ट्रेनिंग टाइम होता है उसके बाद वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग करते थे अपने। तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग वो रात को चांद की रोशनी में करते थे जब उन्हें टाइम मिलता था। तो वो चांद में ट्रेनिंग करने की वजह से उनके जो कंपेनियन थे, उसके साथी थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने उन्हें ध्यानचंद कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनका नाम जो है ध्यानचंद के नाम से फेमस हो गया। तो पूरी फैमिली स्पोर्ट्स के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई थी। उनके भाई मूल सिंह एंड रूप सिंह भी हॉकी खेलते थे, जिनमें रूप सिंह तो बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, वो भी इंडिया की टीम की तरफ से खेले, ओलंपियन है। उनके जो बेटे हैं अशोक कुमार जी, वो भी ओलंपियन है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उनकी पोती भी खेलती रही है, मुझे पता। तो उनका जो परिवार है उन्होंने हॉकी की बड़े दिल से सेवा की है। तो उनकी जो अचीवमेंट है वो वाकई
इतनी काबिल तारीफ है जिन्हें शब्दों में जल्दी कहीं बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने 1926 से लेकर 1949 तक जो इंटरनेशनल करियर में अचीवमेंट दी है और 500 से ज्यादा गोल किए। तो सर डॉन ब्रैडमैन जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, उन्होंने उन्हें एक उपाधि दी थी। वो कह रहे कि वो जैसे क्रिकेट के प्लेयर रन बनाते हैं ना, ये वैसे हॉकी का प्लेयर है जो गोल करता है। तो बहुत बड़ी बात है कि 1936 की जो बर्लिन ओलंपिक्स थी, जो फाइनल मैच जर्मनी के साथ होने लगा, तो सर अडोल्फ हिटलर थे जो उनके लीडर थे, वो मैच देख रहे थे। तो जब उन्होंने इनकी जो आर्टिस्टिक अप्रोच देखी हॉकी में भी, ये कैसे हॉकी का जादूगर हॉकी बॉल को कहीं रिलीज ही होने नहीं देते, तो वो बहुत हैरान भी है और खुश भी हुए। तो उन्होंने इनके आगे ऑफर भी रखी कि अगर आप जर्मनी में माइग्रेट हो जाते हो तो हम आपको आर्मी में कर्नल बना देते। तो बहुत बड़ी बात है किसी प्लेयर के लिए, और उनके अंदर अपने देश के प्रति जज्बा था कि मैंने अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने ये जो ऑफर थी रिफ्यूज कर दी और अपने मुल्क की 1956 तक सेवा की। उनके बाद वो आर्मी से रिटायर हुए, उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने हॉकी की सेवा की, कई प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, कई कोचेस तैयार किए। NS पटियाला में उन्होंने बतौर चीफ कोच जो अपनी सर्विसेज दी और कोचिंग को एक नए मुकाम तक लेके आए। तो जो NIS इंस्टीट्यूट है पटियाले का या दूसरे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एशिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है जिन्होंने केवल हिंदुस्तान को कोचेज प्रोड्यूस करके नहीं दिए, पूरे एशिया को कोच प्रोड्यूस करके दिए। और हमारे कोचेज ने बाहर जाके भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं, बड़ी टीम तैयार की है। तो उनके नाम पे जो उनके अचीवमेंट को ध्यान में रखने के लिए उनका जो जन्मदिन है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे तो मनाया जाता ही है। उसके अलावा उनके जो स्टैचू है वो न केवल नई दिल्ली और आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहाँ पे बनाए गए हैं ताकि लोग याद कर सकें कि हॉकी में इतना अच्छा प्लेयर भी हुआ है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं दिल से इतनी बड़ी हस्ती को प्रणाम करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ जिन्होंने हमारी हॉकी को इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी रिकॉग्निशन दी। तो 3 दिसंबर 1979 में लीवर कैंसर की वजह से उनकी डेथ होगी और उनकी डेथ के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ध्यानचंद अवार्ड शुरू किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ताकि प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो अगर ध्यानचंद जी की अचीवमेंट को शब्दों में बयान करना हो तो एक बड़ा अच्छा गालिब का शेर है, कहते हैं हजारों साल नरगिस से अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस से अपनी बेनूरी पे रोती है, तो बड़ी मुश्किल से होते हैं ध्यानचंद जी जैसे दीदावर पैदा। तो इन जैसे प्लेयर्स पैदा होते हैं, इन्हें बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई कोच कह दे मैं बना दूंगा, हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए, परंतु मेरा मानना है कि इन जैसे प्लेयर गॉड गिफ्टेड होते हैं जो 17 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू करके इस मुकाम तक पहुंच गए। आज हम जब ट्रेनिंग देते हैं ग्राउंड में तो हमारे पास जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि बच्चा 8 से 10 साल का हो तो ज्यादा बेटर है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जल्दी आ जाएगी। अगर बच्चा लेट हो जाए 16-17 साल का या 14-15 साल का, तो उसकी हाई परफॉर्मेंस लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता है बीइंग अ कोच, क्योंकि बहुत सारी कैपेसिटीज ऐसी है हॉकी के फील्ड में या स्पोर्ट्स में जिनको अर्ली एज में इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कोऑर्डिनेशन है या फ्लेक्सिबिलिटी। पर ध्यानचंद जी जैसा केस एक एक्सेप्शनल केस है जिन्होंने 17 साल की एज में गेम शुरू करके हिंदुस्तान को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। तो अब क्वेश्चन ये है, अभी 1980 की मॉस्को ओलंपिक्स से 2021 की जो टोक्यो ओलंपिक्स है, ये 41 साल का पीरियड है। ये इतना टाइम कैसे लग गया भी हमने दोबारा गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए, मेडल लाने के लिए ओलंपिक गेम्स में हमें इतना टाइम लग गया? ये बड़ी सोचने की बात है। 1976 में जो हॉकी थी वो एस्ट्रोटर्फ पे कन्वर्ट हो चुकी थी। 1980 में बाइकआउट हुआ, हमारा दोबारा मेडल आ गया। उसके बाद सबसे बड़ी जो मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है कि हमारे पास कितनी देर को एस्ट्रोटर्फ भी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सके इंडियन हॉकी में। तो लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ इंडियन हॉकी इन ओलंपिक्स और इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो जिन लोगों के साथ हमने आज compete करना है या कब compete करते, जैसे हॉलैंड है,
जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, आज बेल्जियम बड़ी अच्छी सुपर पावर है हॉकी में, इंग्लैंड है, तो छोटे छोटे से कंट्री है, उनमें 500 से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ है। 500 हमारे कंट्री में बड़े दुख की बात है, आज भी 50 से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ नहीं होंगे जो वर्किंग में होंगे। तो इतने कम सोर्सेज के साथ इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना और मेडल टैली में होना वाकई मुश्किल है, और आज हम इस मुकाम तक पहुंच चुके। एक तरफ खुशी भी है, परंतु ये 40 साल का जो पीरियड है ना, ये इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अभी भी जो एस्ट्रोटर्फ की कमी है अपने मुल्क में पूरी नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बनाए जाए जिन पे बच्चे अधिक से अधिक ट्रेनिंग कर सके। और दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये भी है कि ये बड़े महंगे इक्विपमेंट है, इनको तैयार करना, इनको मेंटेन करके रखना भी बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए कोई ना कोई विकल्प गवर्नमेंट को ढूंढना, एसोसिएशन को ढूंढना भी जरूरी है। तो सबसे बड़ा रीजन तो मेरा मानना है भी एस्ट्रोटर्फ की कमी ही रहा है। अगर दूसरा कोई रीजन हम देखें तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ साइंटिफिक कोचिंग की भी कमी मुझे नजर आती है एज बीइंग अ हॉकी कोच, क्योंकि मेरा मानना है कि कोचिंग इन द मॉडर्न स्पोर्ट्स वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड which are derived through research, and these research findings are being used by the successful coaches in their training program. तो क्योंकि आज का जो एज है, कोचिंग की फील्ड में इतने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग मेथड आ गए हैं जिनको ट्रेनिंग में यूज करना बड़ा जरूरी है। परंतु हमारे जो कोचिंग का लेवल है, जो कोचिंग एजुकेशन है, वो टाइम के साथ इतनी अप टू मार्क नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी गेम्स में, खासकर हॉकी में भी पिछड़ापन देखा है। तो ये हमारे जो कोचिंग प्रोग्राम है, जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि टाइम टू टाइम हम अपने कोचिंग प्रोग्राम को मैच करने के लिए अप टू डेट करते रहे। तो 1980 में 80 के बाद जो एस्ट्रोटर्फ हॉकी डोमिनेट होने लगी, तो उसमें क्या था, एशियन स्टाइल हॉकी की जो ब्यूटी थी वो धीरे धीरे यूरोपियन स्टाइल ने कवर करना, उसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। हमारी जो हॉकी है वो शॉर्ट पासिस गेम है और उसमें एक एस्थेटिक अपील है जो देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है कई बार, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल अप्रोच ज्यादा है। जैसे मोहम्मद शाहिद जैसे प्लेयर, प्रगट सिंह जैसे प्लेयर, धनराज पिल्ले जैसे प्लेयर, भास्करन जैसे प्लेयर, सुरेंद्र सोडी जी जैसे प्लेयर, सुरजीत जी जैसे प्लेयर, जब वो बाहर लेकर चलते हैं तो बाहर बैठे व्यूअर्स को बड़े अच्छे लगते हैं भी उन्होंने एक प्लेयर को डॉज मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा। परंतु जब रिजल्टिव हॉकी आती है तो उसमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोटर्फ पे फिनिशिंग में कहीं ना कहीं वहां पे हम मार खा जाते हैं। तो यूरोपियन हॉकी धीरे धीरे एशियन स्टाइल को डोमिनेट कर रही थी। हमारी जो शॉर्ट पासिस गेम है वो एस्ट्रोटर्फ पे कहीं ना कहीं छिपने लगी। उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स बनाने शुरू कर दिए जिसने एशियन हॉकी को खत्म करना शुरू किया। उन्होंने हॉकी में ऐसे चेंजेस लेके आए जैसे हाफ साइड रूल को खत्म कर दिया, हॉकी हाफ टाइम से क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर दी, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए जो हमारे लिए लेके आना इतनी जल्दी मुश्किल था। तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ असर पड़ा। हमारे जो कोचेस थे उतने वेल क्वालिफाइड नहीं थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको बड़ा सुन के हैरानी भी होगी और बड़ा दुख भी होगा। बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे जो NAS डिप्लोमा है उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मैट्रिक, अभी पर्सनल डिपार्टमेंट में चल रही है। जिसने मैट्रिक की है वो 14 डिप्लोमा कर सकता है, पर सही में उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट ने अभी तक वो क्वालिफिकेशन ही चेंज नहीं। तो आप बताओ भी जो आदमी 10th करके इतना बड़ा डिप्लोमा जिसमें स्पोर्ट्स सिम्बियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, साइंस ऑफ कोचिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और जर्नल थ्योरी एंड मेथड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एंथ्रोपोमेट्री जैसे सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है तो वो तो वही कोच ले सकता है जिसका एजुकेशन लेवल भी थोड़ा सा अच्छा होगा। और हमारे यहाँ एक बात की धारणा भी है, मिसकंसेप्शन भी चल रही है लोगों के मनों में भी जो प्लेयर अच्छा कोच है, जो बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, वही अच्छा कोच बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन भी कोचिंग को कहीं ना कहीं खराब करती रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि कोचिंग एक अलग प्रोफेशन है।
ये जरूरी नहीं भी एक अच्छे कोच के लिए इंटरनेशनल प्लेयर होना जरूरी है, क्योंकि खेलना अलग है और कोचिंग एक अलग प्रोफेशन है जिसमें आपको हर चीज की नॉलेज होना, अलॉन्ग विद आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपका फिटनेस लेवल भी अप टू मार्क है, आपकी पॉजिटिव अप्रोच भी होना बड़ा जरूरी है। तो जो साइंटिफिक कोचिंग की अप्रोच है, कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि हमें इतना लंबा पीरियड लग गया इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आने के लिए, खासकर ओलंपिक गेम्स में। तो एक सबसे बड़ा जो रीजन है कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, खासकर जो प्लेयर्स हैं, अब मैं पंजाब में पिछले 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, तो मेरे सामने बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो लड़के खेलने आते हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत गरीब तबके से संबंधित है। तो आज की जो गेम है वो इतनी कॉस्टली होगी। अगर आपको एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी खेलनी है, आपको बढ़िया हॉकी भी चाहिए, आपको शिन पैड भी चाहिए, आपको बॉल भी चाहिए, आपको इसके अलावा शूज चाहिए, साल में 4-5 पेयर, आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए। नहीं तो एस्ट्रोटर्फ पे खेलने से इंजरीज बहुत आती है अगर आप डाइट नहीं लेते। बिकॉज एज बीइंग अ कोच आई पर्सनली फील दैट बैलेंस डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्विक रिकवरी ऑफ एथलीट। तो हमारे जो प्लेयर है उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है इतना अच्छा नहीं है भी वो गेम की जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है भी वो अपनी फैमिली ड्यूटीज और डिमांड की वजह से या फैमिली की कंडीशन की वजह से ही तो बीच में ही अपना करियर छोड़ देते हैं। कई बार बड़ा अच्छा प्लेयर जब हॉकी खेलनी छोड़ता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम एज बीइंग अ कोच ये एस्टिमेट कर सकते हैं भी ये लड़का आगे जाके नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन प्लेयर का कुछ हद तक ठीक होना बड़ा जरूरी है। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, आजकल हमारे पंजाब में या कुछ स्टेट में ये ट्रेंड चल रहा है भी लड़का या आपका बच्चा या बच्ची 10th पास करते हैं तो उनकी एक ही मोटिव है, हमने कनाडा में जाना है, हमने सेटल होना है वहां पे जाके। इसके अलावा उनकी जो सोच है वो किसी और काम पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से बड़ा अच्छा टैलेंट है जो पंजाब का या दूसरी स्टेट का वो दूसरे कंट्रीज में जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं या हमने मेडल जीतने तो इसके लिए कोच के लिए जरूरी है कि उसके पास ग्राउंड में एक अच्छा स्टफ भी खेलने आए जो टैलेंटेड हो, जिसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, वो जो गेम की डिमांड है उसको पूरा कर सकते। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसका भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है जो गेम की डाउनफॉल के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हुआ है, चाहे हम इसे माने या ना माने। कई एसोसिएशन ऐसी हैं, कई स्पोर्ट्स क्लब ऐसे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, लोग हमारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर भी किया है, हमारे लिए टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किए हैं, परंतु ये सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी जो प्रॉब्लम है उनको डील करने के लिए प्लेयर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी होना कुछ ऑप्टिमल लेवल तक जरूरी है। उसके अलावा मैं जो मानता हूँ एक रीजन लैक ऑफ एजुकेशन इज इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, जो सबसे बड़ा रीजन है। तो हमारे जो कोचेज हैं उनका एजुकेट प्रॉपर होना बड़ा जरूरी है। हमारे जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, मैं पंजाब में काम करता हूँ, हमारे जो डायरेक्टर हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं या जो हमारे कई बार मैंने देखा है स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, चाहे वो सेंटर में है या स्टेट गवर्नमेंट पे हैं, उनका गेम के साथ कोई ज्यादा लिंक नहीं होता। वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत कम नॉलेज रखते हैं भी एक प्लेयर की बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो उस कंडीशन में उन्हें उन प्रॉब्लम्स की रियलिटी पता ही नहीं होती, ना ही वो इन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते। मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि हॉकी पंजाब में एक बहुत बड़े लेवल पे खेली जाती है, मगर पिछले 6-7 साल से मेरे कोचिंग सेंटर पे एक भी रुपए का सामान नहीं आया जिससे हम नए जो बच्चे हैं उनको हॉकी के लिए प्रमोट कर सके। हम अपने लेवल पे एनआरए स्पॉन्सर ढूंढते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनसे फंड्स लेते हैं, बच्चों को इक्विपमेंट ला के देते हैं, जबकि ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की और प्राइवेट स्कूल्स की कॉलेजेस की भी बनती है कि वो अपने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करके दें। तो इस वजह से भी
जो कहीं ना कहीं स्टेट्स में और हमारे कंट्री में हॉकी का डाउनफॉल हुआ, क्योंकि हमारे जो ऊपर काम कर रहे हैं हमारे ऑफिसर साहबान, उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप की, जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रही है। बहुत सारे लोग क्रिकेट को क्रिटिसाइज करते हैं भी क्रिकेट की वजह से दूसरी जो गेम्स है उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ, पर मेरा मानना थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अगर क्रिकेट की कोई प्रमोशन हुई है बहुत बड़े लेवल तक, तो उसमें सबसे बड़ा रोल बीसीसीआई का रहा है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो हमारी जैसे दूसरी गेम्स की ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएशन है, जैसे इंडियन हॉकी फेडरेशन है या हॉकी इंडिया, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक अमेचर फेडरेशन है, तो उनको भी आगे आना चाहिए अपनी गेम की प्रमोशन के लिए, अपनी गेम की मार्केटिंग सही करे, बड़े से बड़े स्पॉन्सर लेके आए। अगर वो ये काम नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे नहीं लगता भी उनको यहाँ का इन पोस्ट पे ऊपर आके काम करने का, क्योंकि हर बात पे हम सिस्टम को नहीं कोस सकते। तो वो हमारे जो ऊपर बंदे हैं, या तो वो सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या हमारी सिलेक्शन प्रोसीजर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बतौर जनरल सेक्रेटरी हॉकी फ्री स्पोर्ट एसोसिएशन काम कर रहा हूँ। तो जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो मैंने पहले दिन वहाँ पे एड्रेस किया, तो मैंने एक बात कही कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं कहीं से फंड अरेंज करूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराऊं, उन्हें कहीं ना कहीं से कोई शूज का प्रबंध करके दूं, उन्हें स्पोर्ट्स किट अरेंज करके दूं, उनके लिए छोटे छोटे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाऊं। अगर मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है मैं लोगों से कह नहीं सकता, या मेरी ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, मेरे लिए ये जब मुश्किल है, तो आई थिंक मुझे हक नहीं बनता मैं इन पोस्ट पे काम करूं। मुझे वो जो सीट है उस आदमी के लिए छोड़ देनी चाहिए जो ये काम मेरे से बेहतर कर सकता। तो जो ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है अलग अलग गेम्स की, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करें, स्पॉन्सर ढूंढ के लाए, अपनी गेम की मार्केटिंग करें। ऐसे ही जो ऊपर स्टेट बॉडीज है या जो नेशनल बॉडी है, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी गेम को कैसे मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए लीग ऑर्गेनाइज करें, प्लेयर्स के लिए स्पॉन्सरशिप लेके आए, उनके लिए स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करवाएं, चाहे उनके लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव वे अपनाना पड़े, ये जरूरी है। तो वक्त के साथ बदलना बड़ा जरूरी है। अगर आप नहीं बदलते, अपने आप को अप टू मार्क नहीं करते, तो रीजन यही है कि बीसीएसई है हमारे से कितना आगे चला गया, हम आज भी वहीं पे खड़े हैं। हम यही बात करते हैं, जब भी सारा पैसा तो क्रिकेट ले जाती है, सारे लोग क्रिकेट को देखते हैं, दूसरी गेम्स को कोई नहीं देखता। ठीक है, इसका 20-25% हम कह सकते हैं, पर 70-80% हमारी जो बॉडीज है, जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, तभी तो हमारी गेम्स इतने लंबे अरसे के में इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं करती। एक रीजन ये है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं खत्म हुआ। जब 40 साल लग गए भी हमें इंटरनेशनल या ओलंपिक्स में मेडल लेके आने के लिए, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट खत्म हो गया धीरे धीरे। उन्होंने उस लेवल का जो इक्विपमेंट था वो हमें अरेंज करवा के ही नहीं दिया, या अगर किया तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसका मिसयूज किया, या उसकी मेंटेनेंस में जो लोग काम करते थे उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया, भी वो भी सोर्सेज हमसे खत्म होने शुरू हो गए। अब कितने दुख की बात ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज हम हॉकी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारा ओलंपिक्स में मेडल भी आ गया, पर बड़े कम लोगों को पता होगा कि जो हॉकी इंडिया की सारी स्पॉन्सरशिप है वो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने मेरी प्रोवाइड करवाई है। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, हॉकी इंडिया ने, की कंडीशन आज ये है भी हम अपनी हॉकी को स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते। तो ये कितने दुख की बात ये है। तो इसी बात पर मैं जो वर्दी चीफ मिनिस्टर साहब हैं श्री नवीन पटनायक जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हॉकी को स्पॉन्सर किया, और उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज ओलंपिक्स में हमारी टीम, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हमने मेडल अचीव किया। तो ऐसे इंसान जिंदगी में बहुत कम होते हैं। तो कहते हैं ना, दिल से दे जो दुआ तो वो भिखारी भी अमीर है।
मोती न दे सका तो समंदर फकीर है, देता रहेगा तू सारे अंधेरों को रोशनी, जब तक तेरे वजूद में रोशन जमीर है। और नवीन सर, हैट्स ऑफ टू यू। तो मैं सभी हॉकी लवर्स की तरफ से, सारे प्लेयर्स की तरफ से, कोचिज की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पता लगा कि आपने अगले 10 साल भी हॉकी को स्पॉन्सर किया है, जो उससे भी बड़ी बात है। भगवान आपको बहुत बहुत खुशियां दे, आपको तंदुरुस्ती दे, आप हमारी हॉकी की प्रमोशन के लिए और भी काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो एक रीजन जो ये है, लैक ऑफ स्पोर्ट्स एंड वर्क कल्चर इन इंडिया। तो धीरे धीरे हमारे कंट्रीज में जो स्पोर्ट्स कल्चर है या वर्क कल्चर है वो खत्म हो रहा है। मैंने देखा है हमारे पंजाब में या हरियाणा में, या मैं पास वाली स्टेट देखे हैं, उनमें तो कल्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जब स्कूल में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, उनका एक ही एम है कि हमारा बच्चा CBSE में 10th करे या ICSE बोर्ड से जो पढ़ाई करे। जो स्टेट बोर्ड है वो तो खत्म ही हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चे अच्छे घर का कोई पढ़ने ही नहीं आता। उनको स्पोर्ट्स का उन्होंने स्पोर्ट्स को पूरा सेकेंडरी कर दिया भी। अगर कोई ग्राउंड में जाए भी तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा बनाए और उस स्पोर्ट्स कोटे का फायदा लेकर कहीं ना कहीं जॉब हासिल कर ले ताकि उसकी जिंदगी बन जाए। और बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं भी हम स्पोर्ट्स को एज अ कल्चर अपने बच्चों में अडॉप्ट करवाएं, ताकि अगर वो अच्छे प्लेयर ना बन सके या देखो सभी खिलाड़ियों ने तो इंटरनेशनल प्लेयर बनना नहीं है, ये तो क्लियर है। परंतु अच्छे इंसान बनने के लिए यह जरूरी है भी हमारे बच्चे स्पोर्ट्स कल्चर के साथ और वर्क कल्चर के साथ जुड़े हैं। क्योंकि मेरा मानना एक ऐसा भी है कि अगर किसी बच्चे ने अपनी जिंदगी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं की तो उसके पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जो आगे चल के एक अच्छा एक्सपर्ट तो महसूस कर लेता है बच्चे को, चाहे महसूस हो ना हो। कहते हैं स्पोर्ट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी फॉर कंप्लीट लिविंग। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं, पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं भी हमारा बच्चा ग्राउंड में जाए, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी को अडॉप्ट करे, उसमें अपना प्रोफेशन ढूंढे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस दे। और अगर कोई बच्चा ऐसा निकलता भी है तो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। उनके आगे कुछ प्रॉब्लम तो और आ जाती है, वो अपने बच्चे को माइंड डाइवर्ट करने लगते हैं भी इसमें इतना अच्छा स्कोप नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बहुत कम लोग ये कहते हैं भी हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, अच्छा स्पोर्ट्समैन बने। क्योंकि अगर स्पोर्ट्समैन अच्छा है तो वो 90% अच्छा इंसान भी होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये कुछ रीजन ये है जिसने बहुत लंबा अरसा लगा दिया, जिसके कारण हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं लेके आ सके। परंतु एक साथ खुशी की बात ये भी है भी जितने कुछ सोर्सेज हमारे पास है। अब एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास 15-20 एस्ट्रोटर्फी थे। अब जेब में 5 रुपए लेके हम 50 रुपए का सौदा तो कर सकते हैं सर, 5,000 का सौदा करना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हम इतने सोर्सेज के साथ भी इंडियन हॉकी टीम एशियन गेम्स में मेडल लेके आती रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया, अजलान शाह टूर्नामेंट भी हम जीतते रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफीज या एशिया कप में भी कहीं ना कहीं मेडल आते रहे। तो इतना परफॉर्म करना भी बहुत बड़ी बात है, हम उसको नकार नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। 2004 के बाद मेरा मानना ये अभी हॉकी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, और 2008 में जो सबसे निराशाजनक बात ये हुई भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके ओलंपिक गेम्स में। तो जब हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सके, आई थिंक दैट वाज द ब्लैक डे फॉर द इंडियन हॉकी। तो बड़ा दुख हुआ। उसके बाद धीरे धीरे इंडियन हॉकी रिवाइवल की स्टेज में पहुंची। ये जो आज परफॉर्मेंस आई है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टीम में 10-11 प्लेयर पंजाब के खेल रहे थे। ये जो पंजाब के प्लेयर आज ओलंपिक की टीम में खेले हैं, या 2016 में जो हमने जूनियर वर्ल्ड कप जीता था, इसकी तैयारी 1 या 2 दिन में नहीं शुरू होगी, 1 या 2 दिन में शुरू नहीं हुई। मुझे याद है 2005 में
पंजाब में डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे प्रगट सिंह जी, जो आज MLA हैं, उनके साथ हमारे डायरेक्टर ट्रेनिंग, वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड, not only a hockey player international but also international hockey coach Sardar Sukhbir Singh Garewal, the backbone for the success of hockey Punjab, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से काम किया, उनकी वजह से 15 साल मेरे को देखते देखते लग गए कि आज जो अचीवमेंट आई है, अगर उसमें कुछ पंजाब का रोल है तो द होल क्रेडिट शुड गो टू प्रगट सिंह एंड सरदार सुखबीर सिंह गरेवाल। हमने उनके साथ काम भी किया, हमने सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किए, हमने जो सिलेक्शन ट्रायल्स थे, आप मान नहीं सकते कि हमारे पंजाब में 3 तरह के कोचिंग सेंटर हैं। कोचिंग सेंटर फॉर द बेसिक ट्रेनिंग स्टेज, जिसमें बिगिनर बच्चा आके खेलता है। कोचिंग सेंटर फॉर एडवांस ट्रेनिंग स्टेज, जैसे पंजाब में बहुत सारी अकेडमीज बनाई गई हैं, रेजिडेंशियल हॉकी अकेडमीज है, जहाँ पे बच्चे हॉस्टल में रहकर ट्रेनिंग करते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें हाई परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और आगे नेशनल कैंप और इंडिया कैंप के लिए भेजा जाता है। तो ये 3 तरह के कोचिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए गए। तो इन अकेडमीज में बच्चे की सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था, आप मान नहीं सकते, हम 7 दिन से लेकर 10-10 दिन लगातार सिलेक्शन ट्रायल्स करते रहे। उन्हीं की वजह से और इतनी इम्पार्शियल होके गरेवाल साहब ने वो सिलेक्शन प्रोसीजर ऑर्गेनाइज किया कि ये जो आज बेटर रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं इन दोनों पर्सनैलिटीज का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। तो 2014 में हमने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता दोबारा, 2014 की कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल आया, 2016 में वर्ल्ड हॉकी लीग में ब्रॉन्ज मेडल आया, 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप जीता और 2021 में हमने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल किया हासिल। और इसके अलावा हमारी वुमेन टीम फर्स्ट 4 में क्वालिफाई हुई, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो 2014 से ये जो परफॉर्मेंस का दौर शुरू हुआ था, वो आज ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक मुकम्मल हो गया। ये ओलंपिक गेम्स में भी हमने जो मेडल अचीव किया, अगर इसके साथ साथ वुमेन हॉकी का मेडल भी आ जाता तो बहुत बड़ी बात होती, मेरा मानना सर। परंतु इतनी बड़ी परफॉर्मेंस को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। तो जब ये मेन टीम का मैच चल रहा था, तो मेरी बाइक चल रही थी, तो जी न्यूज वालों ने मेरे से पूछा भी आपकी क्या व्यूज है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर, जो इतने बड़े टूर्नामेंट होते, इतने बड़े मैचेस होते हैं, उनमें जो डिफरेंस ऑफ टीम्स है वो बहुत कम हो जाता है। तो उस लेवल पे आके वही टीम जीती है जो चांस अवेल कर लेती है। तो इंडिया ने चांस अवेल किए, हमने मेडल हासिल कर लिया। वुमेन टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिपार्टमेंट में गलती हुई, हम लास्ट में मैच लूज कर गए। परंतु फिर भी बहुत बड़ी बात है कि हमने लास्ट 4 में क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल तक प्रवेश किया। तो ये 40 साल का जो पीरियड है ना, ये जितना स्ट्रगल पूर्ण रहा है, उतना ही दुखदायी भी कहीं ना कहीं रहा है। प्रॉपर इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज हमारे पास थे नहीं, और कहीं ना कहीं हम जूझते नजर आ रहे थे। सर, हेलो, हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है ना? Yes sir, you are audible. हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो प्रॉब्लम आई मेन, तो बड़ी दुखदायी थी। कहते ना खुदा मिला, ना विशाले सनम, ना इधर कह रहे ना उधर के। एस्ट्रो तरफ हमारे पास थे नहीं, फैसिलिटीज थे नहीं, और कम्पीट हमें उन लोगों के साथ करना था जो हमसे हर चीज में आगे था। तो एक ये सबसे बड़ा रीजन रहा। एक बार एक उम्मीद सी जागी थी 2000 की सिडनी ओलंपिक में भी, हमने अगर पोलैंड के साथ स्कोरिंग पावर ज्यादा स्कोर करके मैच जीत जाते तो हम क्वालिफाई कर सकते थे तब भी। लेकिन लास्ट मिनट में गलती हो गई रमनदीप से, जो कहा गया, परंतु एज बीइंग अ कोच मैं नहीं मानता भी उससे कोई गलती हुई।
उसमें उस ओलंपिक्स में भी अगर देखा जाए तो इंडिया क्वालिफाई कर सकता था। उसमें जितना रोल अगर किसी प्लेयर का था या कोच का था, उससे ज्यादा रोल मैं मानता हूँ इंडियन हॉकी फेडरेशन का था। 1998 की जो एशियन गेम थी उनमें इंडिया ने गोल्ड मेडल 32 साल बाद हासिल किया। सुनने में आया जो इतने इतने बड़े प्लेयर थे उन्हें कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करने भी नहीं गया। उनको कैश प्राइज या उनको ऑनर तो क्या करना था, उन्हें उन प्लेयर्स को सही ढंग से किसी ने डील भी नहीं किया और उनको संभाल के भी नहीं रखा गया। 1998 में हमारे जो 2 गोलकीपर थे आशीष बलाल और सुबैया, आई थिंक द बोथ वर द आउटस्टैंडिंग गोलकीपर इन द वर्ल्ड हॉकी। तो बड़े दुख की बात है 98 में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले दोनों गोलकीपर 2000 की सिडनी ओलंपिक में दोनों टीम में शामिल नहीं थे। तो जो लास्ट गोल पोलैंड में के मैच में लास्ट मिनट में हमें हुआ, उसमें मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं गोलकीपर की बहुत बड़ी गलती थी जिससे अपने उन्होंने गोल खाया। अगर मेरा मानना भी बलाल और सुबैया जैसे गोलकीपर होते तो शायद वो मैच हम ड्रॉ ना करते। तो इंडिया ये जो ग्लोरी आज 21 साल बाद आई है सिडनी ओलंपिक में भी आ सकती। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से बहुत लंबा टाइम लग गया। तो दुख भी है क्योंकि एक मैंने देखा लोगों में इंटरेस्ट खत्म होने लगा था। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे थे अच्छे घर के जो अपने बच्चे को ग्राउंड में लेके आते थे भी हमने अपने बच्चे को नेशनल गेम खेलने के लिए लगाना है और उसको एडमिशन दिलवानी है। तो लोगों का इंटरेस्ट हॉकी से डाइवर्ट होने लगा था। बहुत हमारे जो दुख की बात इससे ये भी है जिन लोगों ने हॉकी से बहुत कुछ हासिल किया, हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हमारे ओलंपियंस हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उन्होंने भी बहुत कम लोगों ने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इस गेम के लिए मोटिवेट किया। तो ये भी एक बड़े दुख की बात है। मेरा मानना ये है कि जितने भी हम एक्सपर्ट्स बैठे हैं, चाहे मैं कोच हूँ, चाहे मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ, चाहे कोई पुराने प्लेयर है, एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन्हें अपनी गेम की प्रमोशन के लिए भी बच्चों को हॉकी के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जो आज तक खत्म हो चुका था। लेकिन अब इस मेडल के बाद हो सकता है कि जो रिवाइवल ऑफ हॉकी है स्पेशली एट ग्रास रूट लेवल वो दोबारा से शुरू हो सके। तो सर मेरे अकॉर्डिंग ये रीजन है, अगर आप जो मुझे व्यूअर सुन रहे हैं या कोई मुझे देख रहे हैं उनको लगता हो भी और भी कोई रीजन है हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये पॉइंट रखूंगा कि जो टोक्यो ओलंपिक्स है ये कैसे गेम चेंजर हो सकता है इंडियन हॉकी में। हाँ जी भार्गवी मैडम कुछ आप कहना चाहोगे? कंटिन्यू करूं सर? जी सर। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 द गेम चेंजर ऑफ इंडियन हॉकी। तो सबसे खुशी की बात मुझे ये हो रही है भी हमारे जो प्लेयर मेडल लेके आए हैं या जो हमारे प्लेयर्स ने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है उनको बड़े कैश प्राइज दिए जा रहे हैं, उनको प्राइजेस के साथ ऑनर किया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है। एक तरफ से खुशी भी होती है भी हमारे प्लेयर्स को इतने इतने बड़े कैश प्राइज मिल रहे हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी है ना जब वो हमारे पंजाब का जो क्लाइमेट है इतना आप कह सकते हो भी हार्मफुल है भी ये जो मई जून जुलाई की गर्मी होती है उसमें 45 to 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है कई बार। तो एज बीइंग अ कोच जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना तो उसमें हम ये बात रखते हैं प्लेयर्स के आगे भी जो खिलाड़ी मई जून जुलाई अगस्त का प्रिपरेटरी पीरियड अच्छी तरह से ट्रेनिंग करेगा वो आगे चल के कंपटीशन पीरियड में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो इतनी गर्मी में जब वो परफॉर्म करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो आज उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ होगा कि वो जो गर्मी में या सर्दी में 0 डिग्री टेम्परेचर में कंपटीशन किया, पार्टिसिपेट किया, उसका फल आज मिल रहा है कहीं ना कहीं। उनके परिवार के जो लोग हैं, हमारी स्टेट के जो लोग हैं जिन्होंने दुआएं की हैं,
वो कहीं ना कहीं इस बात से मैं पूरा तरह सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरे ग्राउंड का लड़का रुपिंदर पाल जो ड्रैग फ्लिकर है, उन्होंने भी ओलंपिक्स में 4-5 गोल किए हैं, तो उन्हें बहुत बड़े बड़े कैश प्राइज मिल रहे हैं। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने 2.5 करोड़ दिया है, यूपी गवर्नमेंट ने भी दिया है, एसजीपीसी ने दिया है। तो खुशी की बात कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो रही है। ये पॉजिटिव अप्रोच है लोगों के लिए भी। अगर हम ग्राउंड में खेलने आएंगे तो अगर हम इस फील्ड में मेहनत करते हैं तो इसमें भी हम अपना अच्छा प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। परंतु ये पॉजिटिव चेंज तभी हो सकता है अगर गवर्नमेंट उन प्लेयर्स के ऊपर भी कंसंट्रेट करे जो नेशनल चैंपियन है, नेशनल प्लेयर्स है। बेसिकली डॉक्टर निशांत, एक बात होती है, आप तो क्वालिफाइड कोच हैं। जी सर। लार्ज पॉपुलेशन इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर गुड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। जी भी सर। अगर ग्राउंड में हम 100 बच्चे को खेलने लगाते हैं ना एक साल में, तो उनमें से 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं। परंतु जो बाकी 95-96 प्लेयर्स हैं, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। खासकर वो प्लेयर जो नेशनल खेलते हैं 2-3 बार, या नेशनल चैंपियन होते हैं, नेशनल मेडल होल्डर होते हैं, या स्टेट मेडल होल्डर हैं। एटलीस्ट मेरा मानना ये अभी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि उन्हें आर्मी में या पुलिस में वो नेशनल मेडलिस्ट एटलीस्ट उसको जॉब मिलनी चाहिए। तो निशांत सर, आप मानेंगे नहीं, 2006 में आई वॉज द कोच ऑफ ब्रजिंद्रा कॉलेज हॉकी टीम, और हमारे कोचिंग सेंटर के 6 लड़के इंडियन यूनिवर्सिटीज को नॉमिनेट किए। 6 लड़के कोचिंग सेंटर की कंबाइंड यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से खेलना बहुत बड़ी बात है। 400 यूनिवर्सिटी की एक टीम ने बनना है, उसने आगे नेशनल में या किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत कम लोगों को पता होगा भी कंबाइंड खेलना भी इंडिया खेलने के बराबर ही एक तरह का। तो जब वो लड़के खेल के आए, उन्होंने आगे चल के उनका फ्यूचर देखा। एक लड़के को कहा जा रहा है भी भाई तेरा पुलिस में हाइट छोटी है 1 इंच, आपको हम पुलिस में जॉब नहीं दे सकते। तो दूसरी तरफ एक 6 फुट का लड़का जिसका कोई प्रोफेशनल करियर नहीं है, जो स्टेट भी अच्छी तरह से नहीं खेला, उसको सिर्फ हाइट की वजह से जॉब दे दी गई। तो ये मेरे ख्याल कहीं ना कहीं आने वाले यंगस्टर प्लेयर्स में नेगेटिव एटीट्यूड प्रेजेंट करता है। भी मेरे को जॉब नहीं दी जा रही, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, इंडियन यूनिवर्सिटी का प्लेयर हूँ, ये 6 फुट का बंदा है, चाहे इसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है 6 फीट हाइट में, इसको जॉब दे दी गई। सर आप मेरे को बताएं भी इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है। हमारे लड़के आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए गए, सिंपल आर्मी की भर्ती में, तो उसको कहा जा रहा है यार आपकी ये एक उंगली है, ये थोड़ी सी छोटी है, आपका जो शोल्डर है थोड़ा सा एक तरफ से नीचे को है, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो जब ऐसी बातें होंगी तो मेरा मानना है कि प्लेयर्स का गेम्स की तरफ से नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। कौन लड़का खेलने आएगा, भी वो देखते हैं बच्चे भी इतना खेल के भी हम आज खाली घूम रहे हैं, हमें जॉब नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, अभी कोई और काम कर ले। तो जब इतना टैलेंटेड प्लेयर, इतना परफॉर्मेंस वाला प्लेयर आगे चल के लेबर करता है ना, या किसी दुकान पे काम करता है, जो को काम सीखता है जाके, नो डाउट कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन वो जो रोल मॉडल होता है ना कोचिंग सेंटर का, वो दूसरे बच्चों में एक नेगेटिव एटीट्यूड जरूर प्रोड्यूस कर देता है। तो मेरा मानना है ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है ना, ये गेम चेंजर तभी हो सकती है अगर उन 95% प्लेयर का भी कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर को प्रोड्यूस करने के लिए उसके साथ 30 दूसरे प्लेयर ने भी खेलना है, जिन्होंने रोज आके जिनके साथ कंपटीशन लड़ना है, जिनके साथ ट्रेनिंग करनी है। तो जो एटलीस्ट नेशनल प्लेयर है, नेशनल मेडलिस्ट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट प्लेयर को जॉब दे सकती है, और वो मेरा मानना है कि दूसरे आदमी से अच्छी जॉब कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है हमारे यहाँ पटवार खाने में पटवारी की जॉब में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका कोई एजुकेशन लेवल नहीं है, कोई कोर्स लेवल नहीं है। आर्मी में, पुलिस में, मार्केट कमेटी में बहुत सारे, तो उनमें कुछ परसेंट कोटा बढ़ाना चाहिए। अगर प्लेयर की क्वालिफिकेशन और उसकी अचीवमेंट देख के उसे सीधी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ऐसी होने चाहिए पॉइंट भी, हाँ जी आप इतना खेले हो, आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है, हम आपको जॉब देंगे।
अगर चाइना ने या अमेरिका ने या दूसरे कंट्रीज ने ओलंपिक्स में डोमिनेट किया तो उन्होंने ऐसे ओलंपिक विलेज बनाए हैं जहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया, आओ चलो हमारे साथ, हम आपका फ्यूचर सिक्योर करते हैं। तो फ्यूचर सिक्योर तभी होगा अगर हम प्लेयर के बारे में कुछ सोचेंगे। तो कैश प्राइज अगर हम ओलंपियंस को दे सकते हैं तो एटलीस्ट एक ऑप्टिमल लेवल की जॉब देना प्लेयर को बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको भी मेंटेन कर सके, उसको सेटल कर सके। आप 10-12 साल का आपका प्रोफेशनल करियर होता है, उसके बाद आप जॉब के लिए तरस रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हैं ना। मैंने एक पॉलिटिशियन से क्वेश्चन पूछा, सर आप मेरे को बताओ, आप मेरे को कह रहे हो भी आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करो। आजकल किसानों का जो एजुकेशन चल रहा है तो उसका एक ही बेसिक नीड है भी जो फसल हम उगाएंगे अगर उसको मंडी में कोई उठाएगा नहीं तो हमें उसे प्रोड्यूस करने का फायदा क्या। तो सेम थ्योरी स्पोर्ट्स की फील्ड में भी इम्प्लीमेंट होती है। अगर प्लेयर को उसका मूल्य ही नहीं मिलेगा तो वो खेलेगा। निशान सर सेटिस्फाई हो आप मेरी इस बात से? तो जॉब क्रिएट करना गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और कई दूसरे भी जो प्राइवेट बॉडीज हैं उनके लिए जरूरी है कि हम उन्हें मोटिवेट करें प्लेयर्स को। हॉकी में नहीं, सारी गेम्स में जॉब का क्रिएशन होना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा आज भी अगर हम कहें भी गेम चेंजर कैसे होगा, गेम चेंज तो तब हो सकता है ना, ये जो मेहनत है टोक्यो ओलंपिक्स की, मैं कह रहा हूँ पंजाब में हम इसकी तैयारी 2005 से कर रहे हैं। 2008 में मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, 2001 से मैं कोचिंग कर रहा हूँ। 2006 में मालवा हॉकी अकेडमी लुधियाना में मेरे कोचिंग सेंटर के 7 से 8 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और उसी बैच के कई जो लड़के हैं आज इंडियन हॉकी टीम में, हरमनप्रीत, ये जो मनप्रीत है, ये जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो 15-20 साल लगे ओलंपिक मेडल का। और अगर आज हम सोचते हैं कि 2024 की या 2028 की या 32 की ओलंपिक में हमने मेडल लेके आना है तो उसकी जो पॉलिसी है वो आज ही बन जानी चाहिए। अगर हम सोचें कि हम ओलंपिक से 3 महीने पहले आके तैयारी शुरू कर देंगे तो मेडल आ जाएगा, ऐसे नहीं होता होगा। और दूसरा, ये जो कोविड चल रहा है 2 साल से, उसने तो वैसे ही गेम्स को इतना नुकसान पहुंचा दिया, ये वही प्लेयर समझ सकता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ। निशान सर या मैडम, आप मानेंगे नहीं, मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सेक्टर ऑफिसर की कोविड में। पिछले 2 साल से फिर हम अपने रिस्क पे कोचिंग सेंटर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने उन्हें बंद कर रखा है, कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, कोई रेजिडेंशियल अकेडमी नहीं चल रही, कोई सामान नहीं हमारे पास खेलने के लिए आया बच्चे, और हम अपने रिस्क पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है भी हम उन्हें कोविड की जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी फॉलो कर सके। तो 2 साल बच्चों के कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं, कोई नेशनली सही तरह से ऑर्गेनाइज किए जा सके, कोई स्टेट लेवल कंपटीशन ही हो सके। तो आज हमें लगता है कि इसका इम्पैक्ट अभी नहीं नजर आएगा, इसका इम्पैक्ट आगे जाके 3-4 साल बाद नजर आएगा जब पीछे से स्टफ नहीं आ रहा होगा। जब नीचे से जो प्रॉपर स्टफ नहीं आएगा तो ऊपर हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो अगर हमारी सीनियर टीम को अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके नीचे 3-4 बिल्डअप जूनियर टीम्स भी होनी चाहिए, जो हमारे पास वेरिएशन हो, हमारे पास बदल हो। अगर आज एक प्लेयर निकल के जा रहा है रुपिंदर पाल या हरमनप्रीत, तो हमारे पास उनके ऑप्शन होने चाहिए, हमारे पास ऐसे ड्राइव ब्रेकर होने चाहिए जो उनकी जगह ले सके। क्योंकि एक प्लेयर ने सारी जिंदगी तो परफॉर्म करना नहीं, अच्छा कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी आएगा, कहीं ना कहीं रिटायरमेंट भी होगी। तो उसके लिए जो वर्क है वो बड़ी जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। तो हमने मेडल तो अचीव कर लिया, पर इसे मेंटेन करना बड़ा जरूरी होगा। तो इसके लिए ये वो भी जरूरी है, हम ज्यादा से ज्यादा जो एस्टेट और हॉकी स्टेडियम उन्हें बनाए। निशान सर आप मानेंगे नहीं, मैंने 1987 में हॉकी खेलनी शुरू की। 87 में मैंने पहली नेशनल का कैंप लगाया अंडर 12 का, फिर अंडर 14, फिर अंडर 17, मैं सारी नेशनल के साथ जुड़ता रहा। आप मानोगे मैंने 87 से लेके 92 तक एस्ट्रोटर्फ कभी देखी नहीं।
92 में मैंने पहली बार दिल्ली में मोहन सिंह हॉकी टूर्नामेंट होता है, वो पहली बार खेला सीधा टूर्नामेंट जाके। और मेरे को बताओ कि मैं अपनी सारी हॉकी ग्रास पे खेल के सीधा एस्पेक्टर पे जाके कैसे बढ़िया प्रदर्शन दे सकता हूँ। तो ये एक कोच के लिए भी, एक प्लेयर के लिए भी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जरूरी है भी जिन कंट्रीज के साथ परफॉर्म करना है उनके पास 500 हॉकी स्टेडियम है, हमारे पास आज की डेट में 50 भी नहीं है। तो वो हमारे एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम ज्यादा नंबर्स में होना बड़ा जरूरी है। इसके साथ ये भी जरूरी है कि जो एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो। हमारे फरीदकोट में 2012 में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बना। आप मानोगे नहीं कि मैं अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जहाँ पे काम करता हूँ मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन दुख होता है 2012 में स्टेडियम की ओपनिंग होगी, परंतु जो उसका स्प्रिंकल सिस्टम है या उसका जो पानी लगाने वाला वो जो सिस्टम होता है ना, वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो 2012 सितंबर से 8 महीने लगे उसका जो पानी वाला सिस्टम हमें चलाने के लिए, स्प्रिंकल सिस्टम। उसके बाद हुआ वो कि हमारे डिपार्टमेंट के पास ये जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस है हमारा, उसके पास हॉकी स्टेडियम का बिल पे करने के लिए, बिजली का बिल पे करने के लिए पैसे नहीं थे। उसका कनेक्शन काट दिया गया, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसका कनेक्शन काट दिया। तो उस कनेक्शन को दोबारा चालू करवाने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए मुझे 4 महीने सर लगे। तो जाके 2012 से सितंबर से लेके जुलाई 2013 तक वो स्टेडियम प्रॉपर बंद रहा। उसमें कोई पानी का वाटर अरेंजमेंट नहीं था, कोई स्प्रिंकल सिस्टम नहीं था, कोई उसकी सिक्योरिटी नहीं थी। तो उसमें जो कीड़े होते ना, कीड़ियां और कीड़े छोटे होते, उन्होंने एस्ट्रोटर्फ में मोरियां कर दी, होल कर दिए। तो कहने का मतलब ये, वहां पे कोई स्टाफ नहीं था काम करने के लिए, आज भी नहीं है। सभी पानी लगाते हैं, हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड मैन नहीं है, जो सेवादार टाइप होते हैं पीएन, वो नहीं है। तो हम लड़कों को साथ लगा के उसकी मेंटेनेंस करते हैं। कोई हमारे पास प्रॉपर फंड्स नहीं है। जितनी बार भी उसका जो बेस खराब हुआ है, हमने इधर उधर से फंड्स अरेंज करके उसकी मेंटेनेंस की है। तो कहीं ना कहीं कमी है। तो अगर कोई भी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनता है तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होना भी साथ में जरूरी है। उसका, उसके ऊपर जो स्टाफ है उसका होना बड़ा जरूरी है। तभी ये जो स्टेडियम है इसको लॉन्ग टाइम तक यूज किया जा सकता है। नहीं तो जो ये स्टेडियम है या इक्विपमेंट है ये खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये जो जितने भी स्टेडियम बनाए गए उसकी डिमांड नोट की जाए भी, इसकी डिमांड क्या है। हमारी प्रॉब्लम एक ये भी है कि हम जब स्टेडियम कोई भी बनता है तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे हम साथ में बिल्डिंग्स बना देते हैं जिनका कोई जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। अगर यूज होना भी होता है तो साल में 1 बार या 2 बार। उसके लिए इतने इतने करोड़ रुपए लगाना कोई बहुत ज्यादा समझदारी की बात नहीं होती। आप एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाओ, साथ में छोटे छोटे कम्प्लेक्स बनाओ जिनको इजिली मैनेज किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, जिसका कॉस्ट कम हो। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है भी जो ये एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है इनके ऊपर क्वालिफाइड कोचेज का होना बड़ा जरूरी है। वुमेन टीम के लिए अलग से कोच हो, जो बॉयज है उसके लिए अलग से कोच हो, जूनियर के लिए अलग से कोचेज हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो। कहीं ना कहीं इन लोगों का रोल पॉजिटिव होगा हॉकी की प्रमोशन में। हमारे यहाँ क्या है, आप जिस मर्जी कोचिंग सेंटर में देख लो, एक ही कोच होता है और 70-70, 80-80 लड़के होते हैं। खासकर जो ग्रास रूट के कोचिंग सेंटर है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ही टाइम पे आपको इतने बच्चों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ट्रेनिंग टाइम सभी का सेम है क्योंकि सभी बच्चों ने स्कूल जाना। वो तो सुबह 8 बजे स्कूल जाएंगे, 2:30-3 बजे वापस आएंगे, 4:30-5 बजे एक ही टाइम पे आएंगे। तो उस कंडीशन में एक आदमी के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉपर स्टाफ का होना साथ में जरूरी है, वो भी क्वालिफाइड स्टाफ हो जिनको गेम की प्रॉपर नॉलेज हो। और ये जो कल्चर खत्म हो रहा है ना सर स्पोर्ट्स में कि बच्चे नहीं ग्राउंड आ रहे, इसका एक रीजन साथ में मैं ये भी ऑब्जर्व करता हूँ कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। आप मानोगे नहीं भी
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बढ़िया पॉलिसीज स्टेट में और इंट्रोड्यूस की। पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान, राजीव गांधी खेलो इंडिया स्कीम जो आज भी चल रही है सक्सेसफुली। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब उन्हें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, आप मानोगे नहीं, पिछले 10 साल से एक ही प्रॉब्लम आ रही है। इधर से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है डिस्ट्रिक्ट में, उधर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट आ जाते हैं। दोनों की डेट एक ही है। हम इधर प्रबंध करके बैठे हैं, बच्चे एक ही है जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट में भी खेलना है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट में भी खेलना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की कमी है। उनके पास स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले क्वालिफाइड कोचेज नहीं है। हमारे पास बच्चे जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल कॉलेजेस से होने हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना, ये भी एक रीजन है जिसने स्पोर्ट्स की डाउनफॉल में रोल प्ले किया। तो मेरा मानना है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना स्पोर्ट्स का बड़ा जरूरी है। इवन स्पोर्ट्स शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये कहने को तो है फिजिकल एजुकेशन में है। निशान सर, आप देखते हो कि स्कूल में फिजिकल एजुकेशन को किस तरह डील किया जाता है। हमारे पंजाब में तो कई बार ऐसा समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज अ फजूल एजुकेशन विच हैज नो एकेडमिक और अनदर वैल्यू इन द ह्यूमन लाइफ। तो वो तो ये समझते हैं ये तो सिर्फ ग्राउंड में जाकर सीटी मार सकते हैं, इसके अलावा इनका कोई तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है उनका। यहाँ कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारा काम होता है। मैंने बतौर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर 3 साल काम किया, तो हमारा डायरेक्ट लिंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता था। तो बहुत सारे हमारे डिप्टी कमिश्नर जहाँ जो हमारे कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स थे, जो बड़े इंटेलिजेंट बड़े अच्छे भी थे, इनमें ये नहीं मैं करता, उन्हें यही नहीं पता भी हमारे डिपार्टमेंट का काम क्या। तो वो उन्होंने कई बार मेरे से पूछना, बलजिंदर आपके डिपार्टमेंट की क्या वर्किंग होती है, तो आप ये बताओ। दी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारे जो ऑफिसर साहबान उनको कई बार ये नहीं पता होता कि हमारा डिपार्टमेंट काम क्या कर रहा है। हमारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारी डे स्कॉलर स्कीम चल रही है जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर गाइड दी जा रही है। हमारे जो स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेशन से स्टेट लेवल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नेशनल खेलने बच्चे जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है ना, इसका होना बड़ा जरूरी है। ये गेम चेंजर तो तभी होगा ना अगर नीचे से गेम चेंज होगी। तो हम ऊपर से गेम चेंज करके कुछ नहीं कर सकते अगर नीचे गेम चेंज नहीं है। अब कई बार एज बीइंग अ कोच मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बड़े टैलेंटेड बच्चे आते हैं ग्राउंड में खेलने, परंतु उनके स्कूल का कॉलेजेस का कोई प्रॉपर उनको सपोर्ट नहीं मिलती। वहां मैंने 92 से 2000 तक 8 साल कॉलेज की तरफ से हॉकी खेली। उसमें मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं सारे कॉलेजेस का बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ दिल्ली में, जिसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया। तो मेरा मानना था कि कहीं ना कहीं वो जो स्पोर्ट्स हॉस्टल थे कॉलेजेस में, उनका बहुत बड़ा रोल था, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट रहते थे, हमें डाइट मिलती थी, हमने फ्री पढ़ाई कर ली, एजुकेशन बहुत हद तक। आज पंजाब में वो सारे कॉलेजेस के जो स्पोर्ट्स विंग है वो खत्म हो चुके। ये कितने दुख की बात है। ये मेरा हम कभी मैं रोज उस जगह से गुजरता हूँ जिस हॉस्टल में मैं रहता था। आज वो हॉस्टल का वो कमरा वो खंडर बन चुका है। उसे देख के बड़ा दुख होता है भी ये कमरे में हम रहते थे, ये ग्राउंड में हम खेलते थे। कॉलेज वालों के पास उतने फंड नहीं है जिसको मैनेज कर सके, ना ही वो गवर्नमेंट ने वो पॉलिसीज खत्म कर दी है। तो कहीं ना कहीं वो जो गेम चेंज है ना वो नीचे से होनी चाहिए, ग्रास रूट से। तो उसका भी बहुत जो रोल है वो कहीं ना कहीं है। तो कैश प्राइजेस फॉर द ओलंपियंस आज मिल रहे हैं। नीरज चोपड़ा जी को 20 करोड़ रुपया मिल गया, बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी की बात है। और भी मिलने चाहिए, बड़ी बढ़िया बढ़िया जॉब्स मिलनी चाहिए। पर ये जो कैश प्राइज है ना निशान सर, ये स्टेट लेवल के प्लेयर को भी होना चाहिए। जी सर, जी डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर को भी होना चाहिए। और अगर उन्हें प्राइज देना है तो साथ ही साथ मिलना चाहिए। ये नहीं भी फॉर्म भर दो
को हम देखते हैं, वो 3 साल वेट करता रहता है प्लेयर भी, आज मेरा स्कॉलरशिप आएगा, उस स्कॉलरशिप की उम्मीद में कई बार प्लेयर शूज लेने को तरसता है। भी ये 700-800 के शूज आते हैं ना, वो उसके लिए लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो कई बार वो स्पॉन्सर जो स्कॉलरशिप है ना उसकी वेट करता है कि वो मेरा स्कॉलरशिप आएगा, मैं उससे अच्छी हॉकी खरीदूंगा, अच्छे शूज खरीदूंगा। वो जो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। तो ये जितनी जल्दी होना चाहिए साथ में होना चाहिए। इसके लिए जो हरियाणा का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है या जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को, प्लेयर्स को बहुत बड़े बड़े अवार्ड दिए। अब ये बात बार बार हम कह रहे हैं, द गेम चेंजर फॉर इंडियन हॉकी टोक्यो ओलंपिक्स 2020, जितने पार्टिसिपेंट थे, जितने मेडल विनर्स थे, उनको कैश प्राइज दिए जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। पर निशान सर, आप देखोगे किसी ने उस कोच के बारे में पूछा जो उनके साथ धूप में खड़ा होकर ट्रेनिंग करवाता था, या जो, क्योंकि एक जो प्लेयर प्रोड्यूस होता है ना इंटरनेशनल लेवल का या ओलंपियन लेवल का, वो एक टीम वर्क है। अगर वो कहीं मैं एक कोच से प्रोड्यूस हो गया या मैं एक ग्राउंड पे खेल के बन गया, ये नहीं। तो कम से कम 3 से 4 लोग उसके सक्सेसफुल करियर के पीछे जुड़े होते हैं, उनको किसी ने पूछा ही नहीं। आप मानोगे 2014 की एशियन गेम्स में हमारे लड़के का गोल्ड मेडल आया, तो मैंने उस लड़के को अपने हाथ से, चंडीगढ़ स्पोर्ट्स अकेडमी है 42 सेक्टर में, तो उसमें हमारे लड़कों की सिलेक्शन हुई। एट दैट टाइम आई वाज नॉट इन द गवर्नमेंट जॉब, आई वाज स्टडिंग डीपीएड इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो मैंने पहले एनएस कर ली थी, बाद में डीपीएड एमपीएड की। तो मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं कोचिंग करता था अपनी ग्राउंड में जाके। तो आपको पता है जब एनएस करके निकलते हैं तो उस टाइम इंटर्नशिप नहीं लगती थी, तो जोश बड़ा होता है कोच ने मैंने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि रिसेंटली करंट में हमने डिप्लोमा पास किया होता है। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात ये, जब कोई डिप्लोमे में टॉप करता है, ए ग्रेड लेके आता है, तो उसकी खुशी और बढ़िया ज्यादा हो जाती है। तो मैंने अपने कोचिंग सेंटर से, जब मेरे को फोन आया, हमने 5 लड़कों को प्रमोट किया उस कोचिंग सेंटर से, उस अकेडमी में। तो वो जो 1.5-2 साल वो छोटे बच्चे हमारे पास खेलते रहे, वो 2003 में जाकर आज उनमें से एक लड़का 17-18 साल बाद ओलंपिक में मेडल लेके आया। ये एक दिन की जर्नी नहीं है। ये जो कह दे कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हम सुबह जिम में जाएंगे, वहाँ पे वो जो बॉडी मास का वो डिब्बा खाएंगे, हमारा मसल बढ़ जाएगा, मसल मास स्टीरॉइड लेंगे तो वो मसल दिखाते हैं ना, ये 2-3 महीने का पीरियड नहीं है। इसके लिए बड़ा लंबा पैंडा, बड़ा रास्ता लंबा तय किया हमने, तो 1 या 2 दिन की मेहनत नहीं है। तो एक रीजन ये कहीं ना कहीं निशान सर ये भी है, ये जो जिम कल्चर चल पड़ा है ना, इसने दूसरी गेम्स को बड़ा हर्ट किया। आजकल लोग क्या करते हैं, फिटनेस के नाम पे हम बड़े महंगे जिम में जाएंगे, जहाँ पे हम मुंह में बबल गम डाली होगी और नीचे हमने जीन्स पहने होंगे, और बिना वार्म अप के हम जाके सीधे वो जो होता है ना वेट ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। चाहे किसी को पता हो ना हो वो जो हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कौन से ट्रेनिंग मेथड से कर रहे हैं, या उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो वो जिम ट्रेनर आता है ना, वो कहता है आप ये प्रोडक्ट ले लो, आपकी स्ट्रेंथ जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, आपका मसल मास इंक्रीज हो जाएगा। इसने भी कहीं ना कहीं हमारी स्पोर्ट्स को बड़ा डाउनफॉल किया है, क्योंकि हर प्लेयर को लगता है मैं जल्दी जिंदगी में राइज कर जाऊं। तो मैं उन प्लेयर्स को कहती हूँ, उसको जरूर कहना चाहूंगा या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, फिटनेस का नाम अकेला जिम में जाकर ट्रेनिंग करना नहीं है। अगर आपने फिटनेस ही इंप्रूव करनी है, उसके लिए बड़ी बढ़िया ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइजेज है। आप रनिंग कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो अच्छी तरह से, तो वो ज्यादा बेटर है। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई भी प्लेयर जो ग्राउंड में आ रहा है, अगर वो अपनी गेम चेंज करना चाहता है ना, तो उसके लिए लंबा पीरियड तय करना पड़ेगा। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। हमारे लड़के निशान सर, आप मानोगे अभी लॉकडाउन से पहले मेरे कोचिंग सेंटर के 25 से 30 लड़के पंजाब की टॉप हॉकी अकेडमी में थे, चाहे वो सरजीत अकेडमी जलंधर हो, मालवा हॉकी अकेडमी लुधियाना हो,
یا पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मोहाली हो, पंजाब एंड सिंध बैंक हॉकी अकेडमी हो, SDPC हॉकी, तो हमारे कोचिंग सेंटर के 25-30 लड़के वहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं। परंतु दुख की बात ये है उनमें से 1-2 को छोड़ के बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं भी हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए बड़ा लंबा टाइम लगेगा। उन्हें ये लगता है भी आज हमने खेलना शुरू किया, आज हम 2 साल बाद एकेडमी में चले जाएं, 2 साल बाद हम इंडिया कैंप में आ जाए, वहां से हमें जॉब मिल जाए और उसके बाद हमारी लाइफ सेटल हो जाए। तो मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं, इतना जल्दी ये काम नहीं हो सकता। मुझे खुद जिंदगी में सेटल होने के लिए 20 साल लग गए। तो अपनी जिंदगी में 10-11 साल की उम्र 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और 31 साल की उम्र में जाके गवर्नमेंट जॉब मिली, वो भी आउटसोर्सिंग में, और उसके बाद 40 साल की उम्र में आके थोड़े से आप कह सकते हो भी हम लाइफ में सेटल हुए। तो बड़ी लंबी जर्नी है। वो कहते ना, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने जहां और भी है। तो सक्सेस इज नॉट अ जर्नी, इट्स अचीवमेंट। तो इसी तरह के टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल तो आ गया है, परंतु मैं आप सबको बता दूं, इसको मेंटेन करना और मेडल का कलर चेंज करना, इसे गोल्ड में कन्वर्ट करना, तो ये तभी हो सकता है जब गेम नीचे से चेंज होगी। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो बॉडीज हैं, हमारे जो लोग हैं, वो इसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करेंगे। पर एक दुख की बात मैंने ये भी देखी है, जो हमारे पुराने इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं होता। या तो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो ओलंपियंस है, या तो वो सिलेक्टर है, सिलेक्शन करते हैं, या वो रिजेक्टर है, क्रिटिसाइज करते हैं। ग्राउंड में जाके वर्क बहुत कम लोग करते हैं। तो हमारे कोई भी सिस्टम हो, उसमें अच्छे बुरे लोग दोनों तरह के होते हैं। तो हमारे प्रगट सिंह जी MLA हैं, तो उनका रोल बड़ा पॉजिटिव रहा। मैंने उनके साथ एज बीइंग उनके एम्प्लॉय काम किया। वो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे। निशांत सर, आप बिलीव नहीं करोगे भी हमारे पंजाब में उन दिनों में बड़े एस्ट्रोटर हॉकी स्टेडियम बने, और ये सिर्फ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बड़ा सामान आया ग्राउंड में बच्चों के खेलने के लिए, बड़ी डाइट प्रोवाइड की जाती रही, ये सारा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो कोई आदमी उनसे मिलने गया, हॉकी का प्लेयर, तो उसने जब मेरे को आके उनकी अप्रोच बताई तो मैं बड़ा मोटिवेट भी हुआ और बड़ा अंदर से मुझे खुशी भी हुई, मैं किसी न किसी तरह इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो वो मेरा फ्रेंड था, वो जब मिलके उनसे बाहर आया तो उन्होंने उनसे पूछा, भी मिस्टर गुरविंदर सिंह, आप बड़े अच्छे प्लेयर थे, आजकल आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं आजकल बड़ा अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मेरी इनकम बहुत अच्छी है, तो मैं अपनी लाइफ में काफी वेल सेटल हूँ। तो उन्होंने उनसे पूछा भी आप ग्राउंड जाते हो? तो उनका जवाब ये था, निशांत सर, भी मेरे को टाइम नहीं मिलता ग्राउंड जाने का। सुन रहा हूँ। हाँ जी, कहते मेरे को टाइम नहीं मिलता ग्राउंड जाने का, तो मेरे से जाया नहीं जाता। तो प्रगट सिंह जी ने जवाब दिया उनको। वो कहने लगे, यार ये बड़े दुख की बात है, अभी आप इतने अच्छे खिलाड़ी रहे हो, आज आप अपनी जिंदगी में बहुत वेल सेटल हो, तो जिस चीज ने आपको इतना कुछ दिया, आप उसको कैसे कुछ दे रहे हो, उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं ग्राउंड में नहीं जाता। करा चलो मान लिया आपका स्केड्यूल बड़ा बिजी है, आप नहीं जा सकते, तो आप जब आपको टाइम मिले, महीने में एक बार, 2 महीने में या 6 महीने में आप जाओ, आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करो, उसको स्टिक लेके दो, उसको शूज लेके दो, आप उसको जो आपकी नॉलेज, आप इतने अच्छे खिलाड़ी रहे हो, आप जब भी आपको टाइम मिले आप उसको 5 मिनट 10 मिनट उसको हॉकी के टिप्स दो। या आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप अपनी गेम की प्रमोशन के लिए कोई ना कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ, जिसमें बच्चों को परफॉर्म करने का, बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने का मौका मिले। बिकॉज टूर्नामेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग परफॉर्मेंस, यू नो वेरी वेल देन मी। तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करो, चाहे टूर्नामेंट करवाओ।
تو जब उसने मेरे को ये बात आके बताई तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो हमने भी इस चीज से बड़ा कुछ सीखा। तो अकेला हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या बॉडीज को भी आपने ही करना है, हम लोगों को भी अपनी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझनी पड़ेगी, चाहे वो व्यूअर्स हैं चाहे वो स्पॉन्सर्स हैं। तो हमें भी अपनी गेम की प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे मैं गेम से रिटायर ही क्यों ना हो गया हूँ, चाहे मैं जॉब से रिटायर हो जाऊं। तो ये जो सिस्टम है ना ये चलना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। ये गेम चेंज तभी होगी जब नीचे से हम कुछ, हर एक आदमी अपना कोई ना कोई रोल प्ले करेगा, चाहे वो अपने घर में बैठा है, चाहे वो किसी एकेडमी में बैठा है, चाहे वो कोचिंग सेंटर पे में है, चाहे, तो उसका होना बड़ा जरूरी है। तो गवर्नमेंट का रोल कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करने कोई प्राइवेट बंदा तो कर नहीं सकता, ये गवर्नमेंट ने किए, हम उसको कैसे कह सकते हैं। इतने बड़े बड़े स्टेडियम बनाए हैं, इतने इतने बड़े अवार्ड मिल रहे हैं। तो जो पॉलिटिक्स का रोल है ना स्पोर्ट्स में वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, उसे हम अकेला क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए गलत हो। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसको भी हमें दोबारा एक बार कंसिडर करना चाहिए, उसमें उसको रिवाइज करना चाहिए ताकि हम उसमें और जो गेम चेंजिंग एक्टिविटीज है उसको इंक्लूड कर सकें, ताकि ये जो मेडल है ना ये आगे भी आता रहे। क्योंकि ये मेडल लाने से लोगों की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ने से लोगों का हमारे तरफ जो देखने का नजरिया ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप मानोगे जब हमारा लड़का फरीदकोट में लैंड किया तो हमने उन्हें ओपन जिम में बिठा के सारे शहर का चक्कर लगवाया। तो हमारा छोटा सा शहर है, आप तो बड़े शहर में रहते हो, तो लोगों ने बहुत ज्यादा खुशी मनाई इस चीज की। कौन सा दुकानदार है जिसने लड्डू के डब्बे नहीं बांटे, बुके नहीं दिए, उसके गले में हार नहीं डलवाए। तो आज हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना और बढ़ गई। तो मैं एक बार सभी खिलाड़ियों से, सभी कोचेस से, सभी जो हमारी एसोसिएशन है, हमारी गवर्नमेंट है, उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और उन्हें ये एडवाइस भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ वो अपनी जिम्मेवारी को और अच्छी तरह से समझे। ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम बनाए जाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिवाइज किया जाए, प्लेयर को और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाए, ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए जाए। तो तभी ये जो टोक्यो ओलंपिक्स है ना वो गेम चेंजर हो सकती है, और मेरा मानना ये होगी भी, क्योंकि आगे अगले साल एशियन गेम्स होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, वर्ल्ड कप है। तो मैं एज बीइंग अ कोच मैं सोचता हूँ कि इन तीनों इवेंट्स में कोई ना कोई मेडल जरूर इंडिया अचीव करेगी। और मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि एक खिलाड़ी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है, परंतु हर बार खिलाड़ी जीत नहीं सकता। एज बीइंग अ प्लेयर उसे कहीं ना कहीं उसका बुरा दिन भी आएगा, वो हारेगा भी। और इस ओलंपिक में जब हम ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे 7-1 से, तो लोगों ने बड़ी नेगेटिव बातें की थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कहा यार आप वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन से खेल रहे हो, ठीक है कुछ डिपार्टमेंट में गलती होगी, पर इसका रीजन ये नहीं है कि कोई उम्मीद ही खत्म हो गई है। हमने दोबारा रिवाइव किया, अब मेडल आया, उन्हीं लोगों ने दोबारा अलग से दूसरी बातें करनी शुरू कर दी। तो सक्सेस हैज मैनी फादर, फेलियर हैज नन। डॉक्टर निशांत, मैंने कुछ ज्यादा टाइम के लिए लेकिन मुझे बता देना। नहीं सर, नहीं, आपने बहुत डिटेल में हमें हॉकी के बारे में जानकारी दी है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1980 टू 2020। आपने बहुत डिटेल में और आपने ये बताया है कि किस तरह से इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है, जैसे आपने नाम लिया भगत सिंह जी है, आप जो काम कर रहे हैं, किस तरह से इन्हीं के कारण हमें ये मेडल प्राप्त हुआ है। आपने डिटेल में बताया हमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से इफेक्ट किया, हमको मेडल मिलने के लिए इतना समय लगा, टेक्निक किस तरह से चेंज हुई, रूल्स किस तरह से चेंज हुए, आपने सारी डिटेल बता दी है। साथ में आपने जो माइन्यूट चीजें इफेक्ट करती है, जैसा मेंटेनेंस है, हम लोग बड़ी बड़े स्टेडियम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, पर मेंटेनेंस के अभाव के कारण किस तरह से एक प्लेयर को, एक कोच को किस तरह से तकलीफ होती है, ये मैं
हमें आपने बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ और पॉइंट अगर आपको पेश करने हैं तो आप कर सकते हैं, या आपकी अनुभूति हो तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़े सर। सर बाकी सारा ठीक है। हमारे ना डायरेक्टर ट्रेनिंग है सुखवीर सिंह गरेवाल जी सर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप एक बार सिर्फ उनका नाम ले दो। 1992 की बार्सिलोना ओलंपिक में भी इंडिया टीम के कोच थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और दिल से काम किया और बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। वो फाइनेंशियली बड़े वेल सेटल हैं और बड़े एजुकेटेड हैं, बड़े सबसे ज्यादा बड़े अच्छे इंसान हैं। कहते हैं जिंदगी वो जो काम आए किसी के, वरना इसको तो जैसे गुजारोगे ये तो गुजर ही जाएगी। तो सबसे ज्यादा अच्छे इंसान है। एमएस में भी वो सोच रहे हैं, तो उनका एक बार नाम ले दो, हम समझेंगे कि हमारे जो लीडर को बड़ा अच्छा काम किया, सल्यूट बनता है। सर एज के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस उम्र में काम करना, हम तो हमारे तो अभी हाथ खड़े हो जाते हैं, कभी वो 60 प्लस होके भी 65 प्लस है, तो बड़ी शिद्दत से काम किया। ये सारी उनकी एफर्ट है पंजाब हॉकी को रिवाइव करने में, और पंजाब हॉकी ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन हॉकी को काम तक लाने के लिए। तो वैसे तो सारी स्टेट्स भी बहुत अच्छी हैं, चलो, पर हमारे डायरेक्टर ट्रेनिंग का एक बार मुझको बहुत खुशी होगी, आप उनको ओबलाइज कर दो। जी सर, बिल्कुल। डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग जो है आपके, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपने बताया आपके लेक्चर में, वो बहुत सराहनीय है। हम उनको हमारे तरफ से सैल्यूट करते हैं। इसी तरह से जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है उसी के कारण हमें हॉकी में मेडल मिला है, और मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि ये गेम चेंजर जरूर साबित हो, और हॉकी का और जो बाकी गेम है उनका भी आने वाले ओलंपिक्स में मेडल लगे। और जिस तरह जेवलिन में हमको गोल्ड मेडल मिला है, उसी तरह सारे गेम्स में हम मेडल हासिल करें, यही आशा व्यक्त करता हूँ। और आपकी अनुमति अगर हो तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भार्गवी मैम से विनती करता हूँ। ओके सर, प्लीज स्टार्ट किए। Thank you so much, sir. Yes, sir. So I feel and I wish that we are going to improve all the way in the upcoming time in the field of sports. We are really proud and we pay our gratitude to all the players, sport in charge, coaches and department of sports and the people who are continuously in support of them, as our players have been marking remarkable achievements for our mother India despite of having all the challenges. I feel sir कि जब तक आप जैसे कोचेज और सपोर्टर्स करने वाले हमेशा साथ रहेंगे, तो कभी भी प्लेयर को ओलंपिक जाने से और वहाँ से मेडल लेके आने से, शायद चाहे वो कोई भी मेडल रहे, वो लेके आने से कोई नहीं रोक पाएगा सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स। I request all the students, if they want to communicate with sir, they want to talk to sir, or they have any questions for sir, so they can put their questions in chat box. Hello, Bhargavi. Yes, sir. You can ask students for if they have any question or query for them. Yes, sir. Because in chat, or they can mention me in the chat also. Sure, sir. So, students, if you have any questions or you want to talk to Baljinder sir, so you can raise your hand or you can put your question or what you want to say in chat box. Baljinder sir, your chat box is visible for you or not? नॉट मैडम, अगर आप मेरे को बोल के क्वेश्चन बता दो तो ज्यादा बेटर होगा। Sure, sir. Suppose chat box is not visible to me, sir. Okay, Bhargavi, I am as a host and chatbot is visible for me. If the student will raise hand and put the question, I will forward to the Singh sir and or you. Okay? So right now with me there is no any question. Sir, if I have any question for the student have the mail, my mail also. They can mail me the same. I will forward it to you. Bhargavi, you can continue. Yes, sir. We are really glad and we feel really proud of you all, sir. Nishant sir, Baljinder sir, Dheeraj Bhoskar sir, and all the sports departments. Now I request Dheeraj Bhoskar sir, sports in charge of GS Raisoni College of Engineering, Nagpur, to give vote of thanks. Please, sir.
Thank you, Bhargavi. I am audible. Yes, sir, you are audible, sir. Nishant sir, I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Please continue. It's my proud privilege and honor to propose a vote of thanks to all dignitaries and dear students to be present over here. On the behalf of CPN Berar College and GH Raisoni College of Engineering, I would like to thank our Honorable Chairman Shri Sunilji Raisoni, Raisoni Group of Engineering, Nagpur, for their inspiration, motivation and support. I am very thankful to our beloved Director, Dr. Sachin Unjwala sir, for their kind cooperation and give me this opportunity to organize such a nice session. I would like to very much thankful to Dr. Nilendra Bharahati sir for jointly organize this session and support. I would like to thank to all directors, deans, HODs and staff members. My sincere thanks to Mr. Baljinder Singh, hockey coach, for delivering such a nice and great, wonderful insight. I would like to thank Dr. Kapil Jajurwar sir, Professor Shraddha Umate Madam, Bhargavi, for controlling and handling this session. I would like thanks to all CPN Berar College staff, faculty members and GH Raisoni College. And last but not the least, dear students, such a very enthusiastic participation. Once and I thank to all to be present here. I thank you all. Thank you. All to Bhargavi. Thank you so much, dear sir. Thank you so much all of you who have joined and made their remarkable presence for this event. I request all of you to switch on your cameras for the group picture. Camera on. Milind Bharati sir, Kapil Jajurwar sir. Baljinder sir, can you please take your camera little down? Yeah. Sir, shine is coming from your background, sir. So आप थोड़ा लाइट के अपोजिट आ जाइए. मिलिंद बरहाते सर. मिलिंद बरहाते सर. There is some... Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much all for joining the session. Hello. Yes, sir. Hello. Bhargavi madam, can I would like to say something at the last, if you don't mind. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead. तो मैडम मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सबका. अभी आपने मेरे को बोलने का मौका दिया इतने बढ़िया व्यूअर्स के साथ. और मैं आपके चीफ गेस्ट जी का, आपका, डॉक्टर निशांत का और जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो आपकी मैनेजमेंट कमेटी है, यहाँ आपका सारा स्टाफ है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर सरपान है, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे साथ रूबरू होने का मुझे मौका दिया, आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया. तो इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी ये जो आपके स्टूडेंट्स या व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करें. आपको दिन में चाहे 20 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, क्योंकि 1 घंटे की जो एक्सरसाइज है वो आपकी बाकी 23 घंटे की जिंदगी को बहुत बढ़िया बना सकती है.
आप बहुत तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो स्पोर्ट इज नॉट ओनली फॉर हाई परफॉर्मेंस, इट इज ऑल्सो फॉर improving your health, improving your family income, or along with it is very important for the development of your personality. तो किसी ना किसी तरह स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहे, चाहे उसे खेलने चाहे उन्हें खिलाते रहें। तो मैं अंत में एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अंत में मैं भाई यही कहना चाहूंगा, ना खुशी के लिए ना गमी के लिए ये वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। तो वक्त हो गया हमारे जाने का, तो अगर परमात्मा ने चाहा भगवान ने चाहा हम फिर मिलेंगे, और हम आपको निशांत सर स्पेशल इनवाइट करेंगे। हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप हमारे आना पंजाब में और हमारा सिस्टम देखना, जितना भी जो हमारे साथ जुड़ना चाहेगा, यू आर ऑलवेज वेलकम बाय द हॉकी फरीदकोट एसोसिएशन और हॉकी कोचिंग सेंटर फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस फरीदकोट। So nice of you, nice meeting with you. Thank you, sir. Thank you for your invitation. Thank you. Such a nice session. Great. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for your presence, sir. We are really glad to meet you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. I thank you all from the JRC family and CPN Beres CS College. Thank you so much all for joining the session. Thank you all.